exam is not just about how hard you study. It's about how well-prepared candidates fall short, how examiners allocate marks. The real scoring secret is not just a shortcut. It's complete alignment with ICS evaluation mechanics. When you decode how marks are actually awarded, you bridge the crucial gap between simply knowing the syllabus and presenting it exactly the way an examiner expects. Today, we delve into the intricate nuances of step marking, strategic aggregate planning, and presentation dynamics that separate a strong effort from a passing mark sheet. Good evening, everyone. I am Ishwan Kaur, editorial head and member of Sekasa CIRC of ICAI, and it is my honor to invite you all to today's insightful session on CA exam scoring secrets, decoding the market pattern. On behalf of CIRC and Sekasa, I extend a warm welcome to all our esteemed dignitaries, faculty members, my team CIRC Sekasa, VC Yash Jaiswal, Secretary Shivangi Agrawal, Treasurer Shivang Bajaj, and team, and all the energetic CA aspirants joining us today. Whether you are stepping into your preparation journey or giving your final push towards the upcoming exams, today's session is designed to transform the way you approach your paper, moving from pure hard work to strategic, result oriented performance. Behind every successful student initiative is visionary leadership. To set the perspective and guide us on how to master this transition, I now invite our esteemed chairman Sikasa, CA Nitin Gupta sir, to address the gathering. With his deep commitment to student growth and invaluable experience, we eagerly look forward to his guiding words. We invite you to the virtual stage, sir. Thank you, Ishwin. Secretary of CIRC, Nirvi Gandhi ji, our today's webinar session chairman, Pirbund Nahar ji, past chairman of Ratlam branch, and two of our esteemed speaker, Naveen Vigrecha ji from Bhilwara, past chairman Bhilwara branch, and Murli Atal ji from Bhilwara. All my Sikasa team, Yash Jaiswal, Shivangi, Shivang Bajaj, Ishwin, and all the FCAs, the future chartered accountants, a very warm good afternoon to all of you. Friends, basically हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सितंबर में भी एग्जाम्स हैं, नवंबर में भी एग्जाम्स हैं और हम उसकी प्रिपरेशन में अपना इस समय डे एंड नाइट डिवोट कर रहे हैं। और बट एक पढ़ाई के साथ साथ एक चीज बहुत ही जरूरी है, हाउ टू गेट अ स्कोर। बेसिकली वो जो 3 घंटे एग्जाम्स के होते हैं उसमें हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए जिससे सो डेट वी कैन सिक्योर ए गुड नंबर ऑफ मार्क्स। इसी को आगे करने के लिए हमने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे पास एक टीम स्पीकर हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि अल्टीमेटली इन 3 घंटों के दौरान किस तरीके से हमें अपने जो पेपर है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से राइटिंग लिखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली इस समय अगर आप देखें तो हर एक पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, बहुत ही स्कोरिंग होता है, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। तो बेसिकली मैं अपने स्पीकर सर से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ये और बताएं कि हमें पहले वो एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए या एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करने चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बिकॉज किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका टाइम मैनेजमेंट जो पेपर का होता है वो बहुत मैटर करता है। इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे पास आज हमारे स्पीकर हैं। वी वेलकम यू अवर बोथ ऑफ अ स्पीकर। और मुझे लगता है कि हम सभी का ये जो सेशन है आज बहुत ही इंटरेक्टिव रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। हैव ग्रेट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ईश्वन। Thank you, sir, for your inspiring words. To build on these invaluable insights and share a roadmap for our students, it is now my privilege to invite our respected CA Nirbhik Gandhi sir, Secretary CIRC, to deliver his address.
a driving force behind our regional initiatives and a steadfast guide for future chartered accountants. We look forward to his wisdom. Over to you, sir. थैंक यू अश्विन। वेरी रेस्पेक्टेड डायनेमिक चेयरमैन ऑफ द सिकासा नितिन गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई। और साथ ही हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐसी पर्सनैलिटी, दो हमारे गुरु, एक हमारे राजनीतिक गुरु हैं तो एक हमारे विद्यार्थी जीवन से जिनसे हम खुद पढ़े हैं। आज दोबारा मौका मिला है दोबारा उनसे सुनने का, नवीन वागजा सर भीलवाड़ा से, जिनसे खुद अपने ओसी एमसी साइड ट्रेनिंग्स ली है। हमारे कलीग मुरली अटल जी, आज के हमारे को स्पीकर। साथ ही पूरी सिकासा टीम जिस शिद्दत से, जिस एनर्जी के साथ पूरी सिकासा टीम इस बार वर्क कर रही है नितिन जी गाइडेंस में, वास्तव में काबिल तारीफ है। चाहे शिवांगी, स्पिन, यश, शिवांग, बजाज, पूरी टीम वास्तव में नित नए आयाम इस बार बना रही है। सो मैं विशेष देना चाहूँगा पूरी टीम को, सिकासा को, कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ नितिन जी आप इसी पे कार्य करते रहे। और जैसा नितिन जी ने बताया अभी कि किस प्रकार से हम लास्ट 3 महीने में वर्किंग करते हैं, स्टडी करते हैं, उस 3 महीने हम वर्किंग करते हैं, उस 3 महीने की वर्किंग के बाद वो जो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण 3 घंटे होते हैं। उन 3 घंटे में हम कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, कैसे हम 3 घंटे में अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करते हैं, या किस प्रकार से मार्किंग होती है वो हम देखते हैं, तो डेफिनेटली हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं सभी से कहना चाहूँ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सिका सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now I would like to hand over the session to our session chairman, CA Pramod Nahar, sir. थैंक यू अश्विन। सेक्रेटरी CIRC निर्भीक जी, नितिन गुप्ता जी चेयरमैन CIRC, दोनों हमारे आज के लर्नेड स्पीकर आदरणीय वागरेचा जी, मुरली अटल जी, पूरी सिकासा टीम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सिकासा टीम को, निर्भीक जी को, नितिन जी को कि मुझे मौका दिया आज स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात करने का। निश्चित रूप से हम सभी एक मेहनत करते हैं। मैं बहुत कम समय लेना चाहूंगा आप लोगों का, क्योंकि हमारे स्पीकर्स ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वर्किंग की हुई है और मुझे विश्वास है कि ये वर्किंग आप लोगों के एग्जाम में बहुत काम आएगी। पर हाँ, पिछले 30 साल पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और इन 30 सालों की जर्नी में मैं आज की अपनी इस बात को शुरू करने के पहले ICAI के पास चेयरमैन द लीजेंडरी ऑफ द इंस्टीट्यूट अमरजीत चोपड़ा जी की एक छोटी सी बात याद करना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हम अपनी रातें संगीन करेंगे तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी, और अगर हम अपनी रातें रंगीन करेंगे तो जिंदगी संगीन हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपके पास, आपने अपने एजुकेशन लाइफ के 12, 15, 16 साल निकाल दिए हैं, आपके पास 2, 3, 4 साल हैं। अगर इन 2, 3, 4 सालों में आपने अपनी जिंदगी को संगीन कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ जो 25, 50, 75 साल, वो काफी रंगीन रहेंगे। और अगर इस वक्त को रंगीन करने में हम गए तो हम शायद संगीन लाइफ की ओर बढ़ चलेंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। एक बहुत फेमस कोट है शिव खेड़ा का, जो हमको याद होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एक यही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स पूरा कोर्स करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट्स 20%, 15%, 25% आ पाता है। उसके कुछ रीजंस हैं। हमको एक पढ़ाई कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये हमारे लर्नेड स्पीकर आपको डिटेल में बताएंगे। पर मैं जिन चीजों की ओर आपको विशेष फोकस करना चाहता हूँ, वो सबसे पहली चीज है कि आपको एग्जामिनर का माइंड पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर का माइंड पढ़कर आप, क्योंकि आपके पास 3 घंटे, इंस्टीट्यूट की पहली स्ट्रेटेजी, जब हम किसी अदर प्रोफेशन के साथ बात करते हैं तो 100 में से 50 नंबर लाना, और उसमें इतना टफ रिजल्ट, उनको लगता है कि क्या हम पढ़ते नहीं है। पर जब हम, इवन आप लोगों ने अभी मीम्स देखे होंगे कि जब पेपर लीक की बात आ रही है तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम तो ट्रक भर के किताब ले जाएं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं ला पा रहे हैं। तो ये हमारे एग्जाम की ब्यूटी है, और उस ब्यूटी को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और टाइम मैनेजमेंट प्लस अटेम्प्ट मैनेजमेंट करना होगा। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो मैं अब तक अपने आर्टिकल्स के साथ या विभिन्न मोटिवेशनल सेमिनार्स में शेयर करता रहा हूं, कि आपके पास 180 मिनट्स है। अगर आपने MCQ पैटर्न के 30 नंबर्स को 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया तो आपके पास 150 मिनट है, जिसमें आपको 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। और 150 मतलब आपके पास 2 मिनट पर मार्क्स से, अगर आप 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 12 मिनट में आपको उसको सम अप करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो क्वेश्चन 12 मिनट में आप सम अप नहीं कर पा रहे हैं
तो आपको अगले 1 मिनट में उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के चलना होगा, क्योंकि अगर उसको पूरा करने में आपने 30 मिनट 25 मिनट लगा दिए तो पूरा पेपर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमारे इंस्टीट्यूट का भी यही एक पैटर्न है कि वो स्ट्रेस में आप कैसे सफल होके आते हैं, उसमें कैसे निखर के आते हैं, यही वो टेस्ट करती है। तो नॉर्मली 4 घंटे का पेपर अगर आपको 3 घंटे में देना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला सजेशन मेरा टाइम मैनेजमेंट का रहेगा। दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 70 नंबर का चॉइस वाला पेपर है। 70 मार्क्स के चॉइस वाले पेपर के लिए हमारे पास 20 नंबर की चॉइस और है। मतलब हमारे पास 90 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 85 का भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। मतलब अगर आप 60% कोर्स को भी परफेक्टली करके गए तो आप 80 से 85 मार्क्स का पेपर बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए चॉइस वाले क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनानी है। एक मेरा सजेशन रहेगा कि चॉइस वाले क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होते जो पूरे नहीं आते, उसके पार्ट्स हमको आते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उसका कोई पार्ट्स 6 नंबर 4 नंबर या 8 नंबर का आपको बहुत अच्छा आता है तो उसको एडिशनली अटेम्प्ट जरूर करें। इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो शायद आपको लिस्ट मार्किंग में उसके मार्क्स कवर हो जाए। एक दूसरा मेरा सजेशन रहेगा कि स्टडी टाइम में हमारे पास एक दिन का समय होता है, लगभग एक पेपर से दूसरे पेपर में हमारे पास 40 घंटे होते हैं। उसमें से 10 घंटे अगर हम रूटीन के निकाल लें तो हमारे पास 30 घंटे अवेलेबल होते हैं। उस 30 घंटे में अगर आपको 15 टॉपिक कवर करना है तो आप रिवीजन में एक टॉपिक को 2 ही घंटे दें। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे एक टॉपिक को दे दिए, आपने 3 टॉपिक में पूरा समय बिगाड़ दिया और बाकी पोर्शन आपका रिवीजन होने से रह जाए। तो एक इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम पीरियड 180 मिनट्स, क्योंकि मैच प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस दो डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर आप नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो हर बॉल पे आप शॉट ले सकते हो, बट मैच प्रैक्टिस इज एग्जाम, वहां पर आपको हर बॉल को ढंग से प्ले करना है। तो इन चीजों को बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है। तीसरा एक मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज लगती है कि हमको पैनिक नहीं होना है। एग्जाम सिनेरियो में हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, उस पैनिक से आप अपना समय बिगाड़ते हैं। तो वो समय हमको बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि आपने पिछले 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने काफी पढ़ाई की होती है। आपको ये मान के चलना होगा कि मैंने बहुत अच्छी स्टडी की और मेरे पढ़े हुए सिलेबस में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा मेरी एक और सजेशन जो रहती है कि आपको अपनी हेल्थ पे पूरा कंट्रोल रखना है। अगर आपकी बहुत अच्छी स्टडी है, थोरो आपने पढ़ा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली उस समय आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके लिए सारी पढ़ाई बेकार है। तो आपको फिट रहते हुए, प्रॉपर नींद लेते हुए, अच्छा डाइट लेते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोट की है कि हमको जैसे ऑडिट का पेपर है, इंटरनल कंट्रोल का कोई क्वेश्चन आया है, हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर का है, इंस्टीट्यूट ने 4 ही पॉइंट पूछे थे, आपने 4 पेज लिख दिए, तो उसका इम्पेक्ट आपके दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे आंसर्स पर निश्चित रूप से आने वाला है। तो आपको मार्क्स के वेटेज के हिसाब से, मार्किंग के वेटेज के हिसाब से ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर 4 नंबर, और एक चीज और स्टूडेंट ध्यान करें, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ही पूछा हुआ होता है, हम उस सेगमेंट को छोड़ के बाकी सब चीजें लिखते हैं। तो हमको वो चीज भी कवर करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हमको ज्यादा आता है तो वो हमको नहीं लिखना है, जितना पूछा है वही लिखना है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे सजेशन है, सेमिनार है क्या वो? ओके, वो सजेशंस मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज के हमारे लर्नेड स्पीकर आदरणीय वागरेचा जी और मुरली अटल जी के पूरे अनुभव, पूरा एनालिसिस हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम में आएंगे। और आज के जितने हमारे पार्टिसिपेंट रहेंगे शायद अपनी लाइफ में वो इस सेमिनार को अवश्य याद करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही सीआईआरसी की पूरी टीम को मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्टूडेंट्स के फेवर में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू इश्विन। Thank you, sir. Now I would like to invite our speakers of the day.
Yash, can you please invite the speakers? Now we would like to invite CA Murli Atal sir for his explanation about the exam tricks. Over to you, sir. Hi. Yeah. Hi. Thank you for giving this opportunity. I would like to especially thanks सिकासा टीम CIRC निर्भीक जी हमारे बड़े भाई और मैं मेरे साथी स्पीकर नवीन सर जिनसे हम पूरी गाइडेंस लिए हैं मतलब we have studied under him. So thanks for being the part of such panel to guide you on this. I will also like to thanks Nitin Gupta sir and young CIRC team Yash, Shivangi and Shivang for this event. तो बेसिकली जो आज जो मेरा टॉपिक है दैट हाउ टू पास एंड हाउ टू प्लान योर बेसिकली मैं कहूँगा दैट हाउ टू प्लान योर सीए एग्जाम्स एंड सीए फाइनल्स वो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ रिमेनिंग टॉपिक्स फर्दर और मोर गाइड करेंगे नवीन सर हु हैज सच अ वास्ट एक्सपीरियंस तो आज मेरा जो मेन वर्किंग और जो मेरा जो मेन पर्पस है टू इज टू गाइड यू ऑन हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्लान जनरली क्या देखा जाता है मतलब जनरली क्या होता है दैट व्हेन वी स्टार्ट कि भाई हाँ मैं शुरू कहाँ से करूँ व्हेन वी कैन स्टार्ट फिर आज मेरी आर्टिकलशिप चालू हो चुकी है अब मेरे को कब पढ़ना चाहिए तब मेरे को क्लब क्लासेस लेनी चाहिए तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने हमारी लाइफ में भी ऑब्जर्व किए दैट व्हेन वी शुड स्टार्ट व्हेन वी शुड पढ़ाई कब से चालू करें ये चालू करें तो मेरा इसमें ये सजेशन है दैट एवरीबडी शुड एनालिसिस योरसेल्फ I request just to change my slide. Yeah. So basically, I will just highlight on my points that I have covered, need to cover today. There are 10 points or 11 points that I will cover today. कि सबसे पहले we need to understand what is this. Yes, sir. सुलभ जी आप हमारे स्पीकर सर को होस्ट कर दीजिए ना सो डेट वो अपनी आप स्लाइड को मूव ऑन कर सकें Yes, sir. Please continue, sir. Okay. So basically, आज जो continuing the same some patch has been changed. तो basically आज जो अपने analysis हैं वो around 10 points है जहाँ पे मैं वर्कआउट करने वाला हूँ या जो भी कुछ चीज़ है वो अपन करेंगे तो सबसे पहले we need to understand कि भाई सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं what are the our मेरा स्ट्रेंथ क्या है मेरे वीकनेस क्या है मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है दैट नीड टू वर्कआउट क्या होता है कि जनरली यार मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मेरा वो कर रहा है वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर माय वीकनेस एंड व्हाट इज माय स्ट्रेंथ कि सबसे पहले मेरी स्ट्रेंथ क्या है मेरी स्ट्रेंथ सपोज यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आई कैन गेट दैट सपोज मेरी स्ट्रेंथ है थ्योरी आई कैन गेट दैट बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा नहीं जनरली क्या ट्रेंड देखा जाता है आज जनरली अपन फ्रेंड से भी बात करते थे आज ये कर रहा है वो कर रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू फर्स्टली हमारे को अंडरस्टैंड कि सपोज यार मेरा प्रैक्टिकल वीक है या मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो वी नीड टू प्लान सपोज एक एग्जांपल सपोज मेरा एग्जाम मेरा नवंबर में एग्जाम तो अगर आज मेरे पास 8 अगस्त है तो यू शुड हैव द प्लान टिल नवंबर ऐसा नहीं कि यार मैं आज ये सब्जेक्ट ले लेती हूँ कल वो ले लूंगा ये चीज हो जाएगी दैट डजंट वर्क वी नीड टू प्लान इन सच उस बीच में होगा कि यार कितनी बार फैमिली फंक्शंस में जाना है कितनी बार अपन को कुछ और दूसरी चीजें भी करनी है सो वी शुड हैव द प्लान टिल एग्जाम डेट सपोज अगर मेरे पास 8 अगस्त है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट बेस्ट है एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट आई नीड टू इम्प्रूव हो सकता है कि यार मेरी ऑडिट थोड़ी वीक हो मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है मेरा एफएम अच्छा हो मेरा आईडीटी वीक हो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है हो सकता है आपका फ्रेंड थ्योरी में अच्छा हो नहीं मैं उसको देख के मैं कॉपी कर लूं नहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू प्लान सीए इज नॉट अबाउट दैट कि हाँ मैं पढ़े जा रहा हूँ इट्स ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट प्लानिंग कि हाउ वी आर प्लानिंग द थिंग्स ऐसा नहीं कि यार भाई ठीक है आज ये ले लिया कल ले लिया मतलब वी शुड हैव द रोड मैप जब भी आप एग्जाम में या प्रिपरेशन स्टार्ट करें यू शुड हैव रोड मैप फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ कि हाँ सपोज आज मेरे पास ये डेट है एंड आई नीड टू प्लान फॉर द नवंबर आज मैं उसमें सुबह प्रैक्टिकल पढ़ूंगा शाम को थ्योरी पढ़ूंगा एंड दिस इज द मिक्सअप ऑफ ऑल इट डजंट मीन दैट कि मैं एक ही प्रैक्टिकल पढ़े जाऊं थ्योरी मेरा वीक है मैं थ्योरी बाद में करूंगा नहीं यू शुड प्लान कि हो सकता है कि यार मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ले लूं हो सकता है मैं थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट ले लूं तो आपको आपका एनालिसिस करना पड़ेगा सीए इज मेनली आल्सो अबाउट द प्लानिंग इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि हाउ वी आर मैनेजिंग देखो पढ़ना तो है ही
मतलब इट्स नॉट दैट ऑप्शन की नहीं पढ़ेंगे हो जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. व्हाट इज डूइंग, हाउ वी आर स्मार्टली वर्किंग ऑन दिस, कि हाँ मेरे पास क्या प्लान है यार. सपोज आज मैंने प्लान बनाया तो मेरे पास, मेरे को ध्यान है क्या नेक्स्ट मंथ मेरा ये कुछ इवेंट होने वाला है, फंक्शन होने वाला है, मेरे 3 दिन वहां पे वेस्ट होंगे, मेरे 2 दिन वहां पे वेस्ट होंगे. सो यू शुड प्लान क्या नवंबर तक मेरे को क्या क्या प्लान करना है कि मेरे को इस दिन जाना रहेगा. बिकॉज यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी, कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. सेकंड थिंग्स आ जाती है कि दैट वी आर नॉट क्लियर कि यार आज पढ़े कब, कब कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, डिपेंड्स. सो यू शुड एनालिसिस कि आपका जब आपका सबसे बेस्ट टाइम कब होता है पढ़ने का. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली वेकअप कर लेते हैं अराउंड 3 to 4 AM. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो रात को पढ़ना चालू करते हैं. तो यू शुड अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी कि मेरे को पढ़ना कब है. यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड है. सेकेंडली ये चीज हो जाता है कि यार बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जब पढ़ते जाते हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू टेक कंटिन्यूसली, थोड़े छोटे ब्रेक्स हो गए, थोड़े बड़े ब्रेक हो गए, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है. मतलब इवन मैं खुद की बात करूं दैट टिल सीए फाइनल लास्ट एग्जाम डेज को छोड़ दूं तो मैं एवरी डे मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के शाम को 7 बजे तक जो भी प्लान होता था उस हिसाब से पढ़ते थे. और शाम को डेली मेरा शेड्यूल था दैट आई एम गोइंग टू विजिट विद माय फ्रेंड्स. सो यू शुड प्लान. ऐसा देखिए कुछ होता है ना एनर्जी, आज मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सो एटलीस्ट थोड़ा मोमेंटम होना चाहिए कि वो एनर्जी आपको वापस रिकैप मिले. थोड़ा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लिया, हो सकता है 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. आई कैन नॉट गाइड कि भाई किसको कितना टाइम पढ़ना है, क्या करना है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट आर योर कोर्स एंड व्हाट योर थिंग्स. बट एटलीस्ट यू शुड हैव रोड मैप कि हाँ सर मेरे को 5 मिनट का ब्रेक मिलेंगे तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 hours. दैट कंसिडर ऑल द थिंग्स कि भाई मेरे को ब्रेक कहाँ से मिलता है. ऐसा नहीं कुछ अपन ऐसा करने लग जाए जहाँ पे अपन ही एंगेज हो जाए, फिर 5 मिनट के ब्रेक के चक्कर में अपन 2 घंटा ही वहां पे वेस्ट कर रहे हैं. तो यू शुड कंट्रोल ऑन द थिंग्स. एक पॉइंट और मैं लेना चाहूंगा दैट सोशल मीडिया, दैट्स मतलब आज के डेट में अगर बोलूँ तो सबसे मेन एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द स्टडी, जिसके एडवांटेजेस भी बहुत है पर डिसएडवांटेजेस भी बहुत है. इट्स एडवांटेज ये है कि वी कैन इजीली अंडरस्टैंड थिंग्स जो पहले नहीं आती थी या पहले चीजें आती थी या नहीं आती थी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. बट आज की डेट में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज दैट द सोशल मीडिया. भाई मेरा फ्रेंड इंस्टाग्राम चला रहा है, किसी ने एक इंस्टा स्टोरी डाली, मेरा फ्रेंड स्नैपचैट चला रहा है, यार स्नैप स्ट्रीक मेरी नहीं टूट जाए. तो वी शुड थिंक ऑन दैट. जब अगर मैं पढ़ रहा हूं तो दैट शुड बी द माई स्टडी टाइम. ऐसा नहीं कि यार भाई आज ये चला, क्योंकि एक बार अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखने लगे मतलब इट विल टेक आधा घंटा 1 घंटा कहाँ पे निकलेगा वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट द टाइम. वो चीजें भी आपके माइंड में ऐसी चीजें डालेंगे, साला इनका एल्गोरिथम ही ऐसा सेट है कि एक बार चलेगा तो एल्गोरिथम जो आप देख रहे हैं वो आपको बार बार दिखाया जाएगा. तो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 4 महीने या 6 महीने इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं चलाएंगे तो इट डजेंट मैटर. ना किसी को फर्क पड़ रहा है आपकी एक रील से, ना किसी को फर्क पड़ रहा है आपके स्नैप स्ट्रीक से. सो जब आप पढ़ रहे हैं यू शुड बी 100% डेडिकेटेड टू योर टास्क. कि आप जब पढ़ रहे हैं यू शुड बी 100% डेडिकेटेड कि हाँ दिस इज माई टाइम, दिस इज माई बेस्ट टाइम. उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भले किसी भी चीज को, क्योंकि इफेक्टिव स्टडीज इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हेन यू आर स्टडिंग ओनली. यू नीड इफेक्टिव स्टडी कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो उसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके अपन चीजें चेंज हो रही है या ये सब कुछ हो रहा है. तो यू शुड फोकस ऑन इफेक्टिव स्टडीज. यू शुड फोकस ऑन हाउ यू आर प्लानिंग सोशल मीडिया. यू शुड प्लान, सबसे पहले प्लान करिए कि आज से लेकर नवंबर तक का मेरा प्लान क्या है. मैं हो सकता है कि मॉर्निंग में 3 घंटे में ऑडिट पढ़ूंगा, भाई मॉर्निंग में मेरे को जल्दी याद होता है. हो सकता है 3 घंटे बाद मैं एफएम लूंगा कि मेरा प्रैक्टिकल है, वहां पे मेरा स्ट्रेंथ है. हो सकता है कि मैं आईडीटी में थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को सर से सेमिनार लेने पड़ेंगे, लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन कुछ भी समझना पड़ेगा, फ्रेंड से समझना पड़ेगा. तो यू शुड प्लान बिकॉज एवरी पर्सन हैव देयर ओन स्ट्रेटेजी कि कोई इस थ्योरी में बेस्ट है, कोई प्रैक्टिकल में बेस्ट है. तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग और स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी. मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि दैट पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट द स्टडी ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट प्लानिंग. सेकेंडली कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यार मैं कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ या कुछ भी चीज है, यू गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये चैप्टर मेरे को आता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ो, 4 बार, जैसा आपको लगता है. बट यू शुड गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन दैट सब्जेक्ट कि हाँ ये अगर इसका कुछ भी आता है यार, इससे इफ एंड बट आता है कि यार इधर से पूछ भी लिया उधर से भी पूछ लिया, दैट आई कैन इजीली क्रैक दैट. कॉन्फिडेंस
ऑन द सब्जेक्ट इज द मस्ट, कि आप कॉन्फिडेंस आपको कैसे रखना है उस सब्जेक्ट पे और कैसे आपको उसको पास करना है। एक पॉइंट और आ जाता है कि यार बहुत जनों में स्टूडेंट से मिलता हूँ और स्टूडेंट से बात होती है तो सर यार आता तो सब था बट वी डोंट गेट द टाइम। सर अगर आप लिख के नहीं आओगे तो नंबर कोई नहीं देने वाला है। मतलब दैट्स द क्लियर कॉन्सेप्ट। आपको आता है फर्स्ट, आपको 10 मिनट 15 मिनट्स तो आपको ये एनालिसिस करना है हाउ वी स्टार्ट। देखो पढ़ते सब है, सब कुछ करते हैं, बट ये है कि आप शुरुआत कब कर रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है, यू नीड टू सेग्रीगेट। क्या साला जो आता है मेरे को फर्स्ट आता है, देन वी शुड स्टार्ट कि भाई हाँ ये आता है, ये डन डन। एटलीस्ट पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करो। इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स कब देगा, इवन यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द 100% पेपर। बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं कि बहुत अपन सिली नंबर से ही रह जाते हैं, लेफ्ट आउट कर देते। तो एटलीस्ट जब मेरे को एग्जाम टाइम के स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं, देन आई शुड टारगेट कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, और 3 घंटे के फ्रेमवर्क में हाउ आई कैन कंप्लीट माई कोर्स, सॉरी नॉट कोर्स, माई पेपर। सो यू शुड प्लान इन दैट वे कि मेरे को 3 घंटे में मेरा पेपर पूरा कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि हर चीज के नंबर है, हर स्टेप्स के नंबर है। तो इवन आपको लगता है यार ये मेरे को नहीं आता, बट जो आता है आपको समझ में आता है, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो जरूर होगा। यू कैन राइट एवरी स्टेप्स ऑफ द मार्क। हो सकता है अपन एंड आंसर तक नहीं पहुंचे, पर हर चीज की नंबरिंग है, हर चीज के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि यार मेरे एग्रीगेट में ही वो 2 नंबर रुक गए कि मैंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स वेयर वी नीड टू फोकस एंड स्टडीज। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट बॉक्स में, दैट आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। कि मेरे साथ जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट 10 to 15 मिनट्स में लूंगा। तो इट विल बी अ गुड फ्लो ऑन माय साइड। सो बेसिकली एग्जाम पूरा अटेंड करें, प्लान ऐसा करें। अगर आपको हो सकता है कि यार हेजिटेशन हो, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं कि यार मेरे पास हो गया, मैं लास्ट टाइम एग्जाम टाइम मेरा मॉडल टेस्ट पेपर भी अच्छा हुआ, मेरा रिवीजन भी अच्छा हुआ, इवन मैंने पेपर भी सही ढंग से राइट किया, पर एग्जाम हॉल में गया आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। साला चालू कहाँ से करूँ, एक अलग ही डर है। मतलब चालू मतलब ब्लैंक हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, यार अब कहाँ से करें, मतलब एकदम से डर लगने लग जाता है। तो दैट जो अपन को लगता है कि यार ये डर अपने अंदर है, वो अपन को निकालना है। कोई भी सब्जेक्ट है साला, उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक उस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं, यू शुड इट कि हाँ पूछो आपको क्या पूछना है। मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैंने मेरा मोटिवेशन लिया था कि आई डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, आई हैव क्लियर द माय सी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं क्लासेस नहीं जाता था, डिफरेंट चीजें होती थी, अलग चीजें होती थी, बट मेरा एक मोटिवेशन था द बिग 4 आर्टिकल्स। या मतलब जो बड़ी फर्म्स में है कि यार वो उनके पास उनके आर्टिकलशिप पीरियड का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, वर्किंग भी होती है, एंड दे आर कवरिंग द कोर्स इन द 4 months, 4 to 5 months डेडिकेशन। तो व्हाई वी कैन नॉट। और जब जब अपन कोई भी किसी भी चीज की प्लानिंग लेते हैं या कुछ भी करते हैं, वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो इसलिए मेरा मोटिवेशन हुआ था कि यार कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है मेरे कुछ सेमिनार्स भी नहीं हुए थे, मैंने अटेंड भी नहीं किया था, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे पास समय हुआ, अगर मैं खुद को टाइम दूंगा, देन आई विल क्रैक द आंसर। भाई मेरे को पता है कि भाई ये चीज अगर मेरी चीज साथ हो जाती है, देन आई विल क्रैक द आंसर। तो मैंने मेरी ऑडिट वीक थी, तो ऑडिट में पढ़ता गया 1 बार 2 बार 3 बार, तो आई गेट द कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता है कि मेरी थ्योरी वीक है, काफी वीक है, मैं इस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल गेट टू दैट। सुबह में पढ़ता था, 1 घंटा मैंने थ्योरी डाल दिया, तो इवन आई हैव द कोर्स। सपोज आज 8 अगस्त है और मेरा नवंबर है, तो मैंने प्लान कर लिया भाई सुबह 3 घंटे मेरा अकाउंटिंग है, और शाम को 3 घंटे मैं एफएम लूंगा, और बीच में 3 घंटे या 2 या 3 घंटे में ऑडिट लूंगा। तो मेरा एक समअप भी चल रहा है कि मेरी प्रैक्टिकल भी चल रहा है, मेरा थ्योरी भी चल रहा है, जो भी मेरा टाइम प्लान होता है वो चलता है। और हर 2 से 3 घंटे 5 मिनट का ब्रेक हुआ, ताकि इट्स नॉट अबाउट द ब्रेक, इट्स अबाउट द एनर्जी यू गेट टू रीड अनदर 2 or 3 hours। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूअसली स्टडी करूंगा 5 से 6 घंटे का विदाउट एनी 5 मिनट्स ब्रेक, तो मेरे अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो भी कहीं ना कहीं पे, अपनी बॉडी बैटरी टाइप होती है कि अगर जितना यूज करूंगा उतने हिसाब से डाउन होती जाएगी। तो यू शुड गेट द चार्ज अप, चाय पी ली या जो भी, वट एवर द सूट्स बेस्ट टू यू। सो यू शुड गेट द एनर्जी कि भाई हाँ यहाँ से आई एम अगेन स्टार्टिंग, आई एम अगेन चेंजिंग द थिंग्स। सेकेंडली एक चीज होती है यार, डिस्ट्रक्शंस होता है कि यार आज बहुत सारी चीज होती है यार, फोन पे बात करें यार, मेरा फ्रेंड तो ये कर रहा है और यहाँ तक पहुंच गया है, मैंने अभी तो कुछ चालू नहीं किया है, या मेरा फ्रेंड ये हो गया। और कितने बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं, यार मेरा हो गया चलो उससे पूछते हैं उसका क्या। भाई वो करके बैठा हुआ है, मतलब ही इज कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट, वो अकाउंटिंग का भी करके बैठा हुआ है, ही हैज कंप्लीटेड फॉर द एफएम भी आल्सो। वो यार चलो होता है बात करते, भाई वो उसका टाइम फ्रेम कंप्लीट करके बैठा हुआ है, देन ही इज वर्किंग विथ यू। मतलब तब आपको बोल रहा है कि यार और क्या चल रहा है, पर वो उसका फ्री टाइम है जहाँ पे वो कर रहा है। Secondly, you should decide your free time, when you are free, when you need to ask,
कि आपको अपने ऊपर कब आपका फ्री टाइम है, कब आपको डिस्कशन करना है। क्योंकि जब आपका फ्लो होता है, जब एक पीरियड होता है, जब एक टाइम होता है, तब आपको पता है कि यार दिस इज द फुल टाइम, आई कैन ग्रैब द थिंग्स इजीली। तो यू शुड फोकस ऑन डेट वे कि मेरे पास प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मेरे पास एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस का मेरे को 100% पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है सर कि भाई पढ़े कहाँ से, भाई मटेरियल क्या लें या क्या नहीं लें, कैसे क्या स्टार्ट करें। तो यू शुड स्टडी, जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप मटेरियल आप रेफरेंस में लेते हैं, दैट शुड बी यूज, कि आप कोई भी मटेरियल या पास पेपर एक बार एनालिसिस करें, कैसे क्या आ रहा है, कौन सा फील्ड है। क्योंकि एवरी पोर्शन, जैसे उस टाइम आईडीटी में देयर आर नंबरिंग दैट 20 नंबर का हमारा कस्टम्स आता था, तो वी गॉट के भाई ये 20 नंबर तो मेरे को छोड़नी ही नहीं। तो यू शुड प्लान इन दैट वे कि भाई मैं ऐसा कुछ प्लान करूँ कि जो नंबर मेरे को लगता है कि यार ये नंबर पढ़ने से मेरे को 100% नंबर आने हैं, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है भाई। कि अगर मेरे को लगता है दैट दिस इफ आई रीड दिस आई विल गेट द 100% मार्क, की ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि भाई 15 नंबर का है या 20 नंबर का पॉइंट्स है, तो दैट आई कैन नॉट लीव। आई वुड वांट कि मैं 100% इसमें स्कोर करूँ ही करूँ, 100% विदाउट एनी हेजिटेशन, या जो भी है, भले उसको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, पर आपको लग रहा है कि वो उससे मिलने से मेरे को नंबर आ रहा है, तो यू शुड गेट इट। सेकेंडली कोई चीज होती है कि भाई कोई ऐसा टॉपिक अपने आज हाथ लग गया है कि यार सालों उसको पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब अपन को जो पता पड़ता है कि ये टॉपिक आता है करीब अराउंड 4 नंबर का आता है या 8 नंबर का आता है, जो भी एग्जाम्स में आता है, उस टॉपिक को मैं कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और वो वर्ड ही याद नहीं हो रहा, वर्ड ही याद नहीं हो रहा, वर्ड ही याद नहीं हो रहा। तो यू शुड ऑल्सो फोकस दैट व्हाट यू वांट टू रीड। सिर्फ 4 नंबर के लिए अगर मैं मेरे 20 घंटे या 25 घंटे या जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइमिंग विच यू आर थिंकिंग एज पर यू अगर लेता है, तो यू शुड थिंक ऑन योर डिसीजन। सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि मेरे को वो वहां से नंबर क्रैक करने हैं जहां से मैं इजीली नंबर दूं। मतलब यू शुड प्लान, सपोज मेरे पास 100 नंबर है, वी शुड प्लान कि हाँ इतने इतने नंबर तो मेरे को फ्रीज आउट करनी है। उसके लिए भले मेरे को 3 बार पढ़ना पड़े, ए बी सी मार्किंग करनी पड़े, जो भी मार्किंग करनी पड़ी, वो तो आपको सिक्योर करना ही करना है कि भाई हाँ मेरे को 3 बार इस पेपर को पढ़ना है। आई वांट टू स्टडी इन दिस वे, आई वांट कि भाई मैं उसको सुबह भी पढूं, शाम को भी पढूं, जो भी आपका पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जो आपको नंबरिंग लगता है वो तो आप फ्रीज कर ही लोगे यार, 100 में से चलो इतने नंबर तो मेरे सिक्योर हो गए। अब यार मेरे को डर लग रहा है कि यार ये वीक ना मेरी इसमें सेमिनार हुआ है, ना मैं इसमें सेट इनसे पढ़ पाया हूँ, तो ये मेरा वीक पॉइंट हो गया यार, अब इसको कैसे कवर करूँ। तो यू शुड कवर दैट स्मार्टली कि आपको क्या लगता है कि भी उसका नंबर आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं, फिर आपको उसको पढ़ना कैसे कि यार ये अभी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। यू शुड टेक द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स, यू गेट टेक द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स, यू टेक द गाइडेंस ऑफ योर फ्रेंड्स, बट इट इज एज पर योर कन्वीनियंस कि आपका आपका कब है टीचर, जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहा है, यू शुड टेक द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हिम। सो दिस शुड बी इन द प्लान वे कि भाई स्टूडेंट्स बहुत सारे मतलब मेजरली होता है कि पेपर ही छोड़ के आ जाते हैं, तो पेपर ही छोड़ के आते हैं तो नंबर तो नहीं मिलेंगे, मतलब दैट शुड बी क्लियर। सेकेंड पॉइंट होता है कि यार वीडियो लेक्चर्स इज द गुड थिंग दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि आज की डेट में वीडियो लेक्चर्स अपना सब कुछ होता है कि भाई मैं वहां से पढ़ लूंगा। बट आप अगर किसी टॉपिक को आज से 6 महीने पहले पढ़े, या मतलब सपोज आपकी डेट नवंबर, आज से 6 महीने साल भर पहले पढ़ते हैं, तो यू शुड गिव द सफिशिएंट टाइम। अगर वो वीडियो लेक्चर में आज की 8 अगस्त की डेट है और अगर मैं उसको भी अभी पूरा देखता हूँ तो मेरे 3 घंटे वहां पे जाएंगे, 4 घंटे जाएंगे। तो यू शुड मेक एनालिसिस कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या आपके लिए इफेक्टिव क्या है कि यार मेरे लिए बुक रीडिंग इफेक्टिव, मेरे को वीडियो से नहीं होता है, तो यू शुड टेक द बुक रीडिंग, बुक्स मंगाइए या जो भी आपको चीज लगती है जिससे आप कंफर्टेबल है। फिर आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो यू शुड प्लान द कैटेगरी इन ए बी सी की, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी है, सी इंपॉर्टेंट है। तो एक आपको रिविजन्स के लिए भी जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यू शुड मेक द मार्किंग की धीरे धीरे धीरे, मतलब जनरली आई डोंट नो कि कोई कितनी बार रिवीजन करता है, मतलब एक या दो बार तो मैं मान ही सकता हूँ कि 2 बार तो पढ़ते ही होंगे मिनिमम साइड, इवन मैक्सिमम जैसा 1 या 2 जो भी होता है। बट यू शुड प्लान कि डेट मेरा आज अगर एक बार इस टॉपिक को मैंने लिया है, इसका मैं रिवीजन वापस अगली बार कब करूंगा। और कोई चीज क्या होती है जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, इट इज टेकिंग द टाइम। अगर आज मैं कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम अगर मैंने करी है तो इट विल टेक अराउंड, कि भाई आज कोई भी चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि उस चीज को करने में करीब 6 घंटे लगते हैं, पर अगर उसी चीज को मैं वापस करूंगा इट विल टेक फॉर मी टू 4 आवर्स। अगर मैं उसको वापस करूंगा इट विल टेक फॉर मी टू ग्रेजुअली लेस टाइम। सो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तभी आप थोड़ी सी मार्किंग करिए कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग
यू शुड मेक द एनालिसिस ए बी और सी, जो भी आपको लगता है कि भाई वर्थ इट पॉइंट है या जो भी चीज है, तो यू शुड टेक द मार्किंग ऑन द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर ये हो गया, तो यू शुड टेक कि भाई पहले आपको पता होने चाहिए कि भाई जब आप सिटिंग आप एग्जामिनेशंस के लिए वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई आज मैं अगर एग्जामिनेशन के लिए बैठा हूँ, प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि आज मेरा फर्स्ट डे रिवीजन, अगले भाई मेरा 3-3 घंटे में अलोकेट करूंगा, एक पूरा प्लान हो गया भाई ये मैं इतनी बजे उठता हूँ, सुबह 8 बजे या 6 बजे 5 बजे वॉट एवर द टाइमिंग भी, इतने 4 घंटे में ये करूंगा, 5 मिनट का मेरे पास ब्रेक रहेगा, 1 घंटे का मेरा लंच ब्रेक हुआ, थोड़ी देर मैंने वापस किया, वापस मैंने स्टडी करी, वापस में 1 घंटा वापस इधर चला गया उधर चला गया वापस आया। तो मेरा एक पूरा प्लान भी होना चाहिए, और उसमें भी ये प्लान होना चाहिए दैट इस दिन में अगर मेरा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सपोज आई विल प्लान की अगर मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है कि भाई अगर मैं जुलाई से भी प्लान करता हूँ तो मेरा अगस्त सितंबर तक भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में मेरे को रिवीजन के लिए पहले मैंने उसी सब्जेक्ट को करीब 15 दिन दिए थे, अब उसी सब्जेक्ट को मैं करीब 7 दिन में भी कर लूंगा भाई, अप डाउन करके कर लूंगा। सेकेंडली कोशिश करो दैट जो भी आप प्लानिंग लें, मतलब क्योंकि आई कैन नॉट गाइड यू द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट कि भाई ये अपना स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो गया, ये पढ़ लो तो पास हो जाओगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि कोई की कैपेबिलिटी क्या है, समवन हैव द कैपेबिलिटी, कोई फास्ट लर्न कर लेता है, कोई धीरे लर्न करता है, तो इट्स टोटली डिपेंड। और अपन को पता होता है कि भाई मेरे को पता है कि यार मेरा ऑडिट में मेरे को धीरे चलता है, या मेरे को पता है कि मेरे को एफएम में इश्यूज आते हैं, तो आई नो माई फेलियर, आई नो माई पॉजिटिवनेस, आई नो माई स्ट्रेंथ, आई नो माई वीकनेस। तो ये मेरे को पता है कि मेरा क्या चीज बेटर है, मैं को किस चीज को बेटर करना है, क्योंकि मैं कब से एनालिसिस अगर नहीं पता है तो पता करो, इवन आई कैन सजेस्ट ऑन दिस, अगर नहीं पता है तो यू शुड लर्न कि व्हाट इज योर बेस्ट थिंग, तो उसको आप प्लान अकॉर्डिंगली करो कि दैट हाँ ये मेरी वीक है तो मैं उसको वापस कवर अप करूं, थिंग्स को समझूं, कैसे क्या वर्कआउट कर सकते हैं, कि अपन कैसे क्या इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर प्लान नहीं बन रहा है तो किसी सीनियर का गाइडेंस लो, सर मेरे को आप गाइड करो कि भाई ये चीज़ है, कोई मतलब इवन आई कैन गारंटी कि भाई कोई आपको अगर सीए इवन सीए फाइनल्स या जो भी मतलब इंटरमीडिएट फाइनल वाला गाइड करेगा, फाइनल उसको सीए गाइड करेंगे, नो वन विल हेजिटेट टू गाइड यू, बिकॉज दे नो कि वो कैसे निकले हैं, क्या निकले हैं, व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स। इवन जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ भी अगर आपने कैसे सीखा हो या लर्निंग करी होगी, दे विल ऑल्सो गाइड यू। ऐसा नहीं कि यार सब करे जा रहे हैं तो मेरे को फ्लो में चलना है कि यार ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो दैट कैन नॉट बी द फ्लो। आई शुड फोकस ऑन व्हाट आई एम। हो सकता है आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स सेकंड और थर्ड टाइम, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो एटलीस्ट यू शुड नो, बिकॉज मैं मेरी बात करूं, मेरे मतलब व्हेन आई एम अपियरिंग फॉर द सीए फाइनल, आई अपीयर इन द मे 15 अटेम्प्ट, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं कि लास्ट की 3 महीने की क्लासेस भी बाकी थी मेरी, जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी या जो भी वॉट एवर द गाइडेंस आई टेक, बट आई डिसाइडेड टू क्विट। भाई बस जॉब ही है, आई विल टेक एंड लर्निंग ऑन माई सेल्फ, कि मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, सो आई हैव क्विट कि भाई जो भी होगा कोई बात नहीं। इवन मेरे तो 2-3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुए थे, बट आई नो दैट आई कैन कवर दिस एस्पेक्ट, कि मैं इस चीज को कवर कर लूंगा, कैसे क्या करना है। तो आई हैव लेफ्ट द माय कोचिंग, मैंने मतलब शायद मई का टाइम था, आई हैव लेफ्ट द कोचिंग इन नवंबर इटसेल्फ। 2 महीने थे, पर मेरे को ध्यान था कि मेरी ये वीकनेस है, तो मैंने उसके लिए सर्च किया, मैंने मेरे फ्रेंड से बात किया, मैंने जो बेस्ट फैकल्टी थी उसके नोट्स मंगाए। इवन आई डोंट टेक उस टाइम वीडियो लेक्चर्स नहीं लिए थे या कुछ भी नहीं लिए थे, ठीक है, समरी शीट आ जाती थी उसको पढ़ लेते थे। तो यू शुड परफेक्टली प्लान, कि ऐसा नहीं होता कोई सजेस्ट करता है कि यार कौन सी चीज पढ़ी जाए, कौन सी क्या करी जाए, तो यू शुड टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम, कि क्या पढ़ के अपन को स्मार्ट वर्किंग करके पास होना है। स्मार्ट टाइमिंग मैनेजमेंट, दैट आई वुड सजेस्ट, दैट इज द स्मार्ट टाइमिंग मैनेजमेंट, हाउ वी आर प्लानिंग। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी होती है, सर मैं आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, जो भी अपन कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, सुबह भी पैक है शाम को भी पैक है, यार बहुत जने एकदम से आ जाते हैं, यार 4 महीने कैसे करेंगे, 3 महीने कैसे करेंगे, हाउ वी कैन करेक्ट। नहीं, डरना नहीं, यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम्स। कोई बात नहीं, आपके पास जितना टाइम बचा है, हो सकता है कि आपके पास आज अगस्त है, मेरे को लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर मेरा अटेम्प्ट, नवंबर, मेरे पास अभी भी 2.5 महीने, तो व्हाट आई कैन गिव द बेस्ट इन द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, दैट आई नीड टू थिंक। ऐसा नहीं कि और 2.5 महीने में मैंने अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, तो हाउ आई कैन डू। नो, बी कॉन्फिडेंट, जो करना है बेस्ट करना है।
हो सकता है कितनी बार होता है कि यार मैं एक ग्रुप ही दे रहा हूँ, ये मतलब बहुत सारी चीजें चलती है। मतलब सीए फाइनल वालों को तो बोलूंगा भाई एक ग्रुप मतलब आप दे रहे हो कि वन यू आर स्किपिंग द वन ग्रुप एंड आप ट्राई करते हैं, नहीं मैं एक ग्रुप में कंफर्टेबल हूँ, पढ़ाई करके दूंगा, सेकंड ग्रुप बाद में दूंगा, मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एटलीस्ट यू शुड ट्राई। आप 6 मंथ लेट सीए बन रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू आर मिसिंग। मतलब you are clearing the CA final exam. Suppose you clear the group 1 in first attempt, you are clearing the second attempt, ग्रुप 2 भी क्लियर हो जाते हो आप, तब भी आपने दिया होगा तो यू क्लियर, बट यू आर लूजिंग योर 6 मंथ। बात ये नहीं है कि मेरे को ऐसा नहीं है आप बोला है कि यार दोनों अटेम्प्ट साथ में, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि आप अटेम्प्ट तो दो, आपको पता तो पड़ेगा व्हाट आर द थिंग्स। ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है तो इट्स योर कॉल दैट व्हेन यू वांट टू गिव, बट एटलीस्ट देयर शुड बी ए प्लेटफॉर्म, देयर शुड बी एक खुद की होना चाहिए, खुद का एनालिसिस होना चाहिए जहाँ पे मैं सोचूं कि नहीं मैं आई शुड ट्राई। ठीक है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा एग्जाम डे, हो सकता है कि यार मेरी प्रिपरेशन ग्रुप 2 की नहीं हुई, ग्रुप 1 की बेटर हो गई, ग्रुप 1 की ग्रुप 2 हो गई, बट जब मैं फर्स्ट डे प्लानिंग कर रहा हूँ ना, यू शुड नॉट प्लान दैट नहीं नहीं यार एक ग्रुप ही देते हैं यार, मेरे भैया सीनियर वाले भैया उन्होंने एक ही ग्रुप दिया था, क्लियर हो गया, नहीं नहीं मैं तो एक ग्रुप ही करूँ। तो यू शुड डोंट मेक द माइंडसेट। माइंडसेट जब आप चालू कर रहे हैं, यू शुड मेक द माइंडसेट के मैं आज अगर मैंने चालू किया है या कुछ भी चालू किया है तो मेरा प्लानिंग एंड तक होना चाहिए, फिर कंसिडरिंग द बोथ द ग्रुप। इधर भाई मेरा सीए फाइनल का हुआ, आई थिंक सो आईपीसीसी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, आई थिंक सो, सो उनको भी जो भी है प्लानिंग, एटलीस्ट जब आप फर्स्ट टाइम प्लानिंग करें यू शुड प्लान फॉर द एंड कि भाई मेरा वन ग्रुप भी होना चाहिए, मेरा सेकंड ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, बाद की सिचुएशंस क्या आ सकती है, हो सकता है कुछ इश्यूज होंगे जब पढ़ते हैं, कुछ इमरजेंसी इश्यूज आ जाते हैं, कुछ हेल्थ कंडीशंस हो जाती है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। सेकेंडली एक हेल्थ की बात करूंगा तो हेल्थ पे जैसे अपन पढ़े जा रहे हैं, लास्ट टाइम पे गए सब कुछ आता था, बीमार हो गए, तो यू शुड ऑल्सो फोकस दैट मेरे को मेरा जो भी मेरी हेल्थ अलाउ करती है, आपको उसके हिसाब से वर्कआउट करना है कि जो भी मेरी प्लानिंग होती है उसको मेरे हिसाब से वर्कआउट करना है, कैसे क्या है। सॉरी कुछ चैट्स आ गई थी इसलिए। सेकेंडली हेल्थ की बात कर रहा था मैं, तो हेल्थ का जो भी होता है तो एटलीस्ट यू शुड फोकस दैट, हाँ ये मेरे होने से मेरे को मेरे हेल्थ का एनालिसिस करना है कि जब मैं एग्जाम देने जाऊँ मेरे पास हेल्थ मेरी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिवनेस जितनी आप लेके जाओगे ना एग्जाम में, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये मेरे में मतलब लिटरली इवन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज दैट कि कोई चीज नहीं आती तो उसको पढ़ो आप, मतलब प्लान करो 15 मिनट ही पढ़ो, बोलिए एक सब्जेक्ट हो सकता है किसी बुक्स में 10 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो, आधे घंटा पढ़ना है उस चैप्टर को, डेली पढ़ो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई अब इससे कुछ भी आया ना तो मैं तो जवाब तो दे दूंगा भाई, किस भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आया तो आई वुड आंसर ऑन दैट वे। तो यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अपन को कॉन्फिडेंस ऑन सब्जेक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरा सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग मैंने आपको बता ही दिया दैट यू शुड प्लान फ्रॉम द एंड। टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए मैं जनरली मैं गाइड ही करता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक 3 इडियट्स का डायलॉग है, चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी इधर से उधर हो जाता है, बट उसे वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड। सो वी शुड बी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेल एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे को प्लानिंग के साथ स्मार्ट स्टडीज के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि सीए एक ऐसा फील्ड है जो अपन को स्टडी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत सिखाता है, बिकॉज मेरे पास एक बहुत कम टाइम है, आई नीड टू स्टडी, बहुत बहुत सारी चीजें मेरे को पढ़नी है कि यार ये भी मैं पढ़ूं वो भी मैं पढ़ूं, तो मेरे पास एक टाइम जो मेरे पास होता है वो काफी कम कांस्टेंट होता है, तो आई नीड टू प्लान इन द स्मार्टर वे। और हर स्टूडेंट की एक अलग कैपेबिलिटी है, भाई आप क्लियर करके आए तो यू हैव द कैपेबिलिटी, डोंट डिसग्रेड यार मेरा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है, 2 अटेम्प्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज दैट, हाउ यू थिंक, दैट फर्क पड़ता है कि आपको कैसे क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या हो सकता है कि यार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो तो ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो रहा है, वी शुड मोटिवेट क्या भाई कोई बात नहीं, मेरा ये सब्जेक्ट अभी वीक हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट या ये चीज मेरी चीज गलत चीज हो गई, तो यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बार वर्कआउट करके सोचिए। ठीक है, सेकेंडली जो अपना आ जाता है कि अपना मॉक टेस्ट पेपर है, कि वो बहुत सारे जने ट्राई करते हैं कि इवन फॉर द मॉक टेस्ट पेपर ये सब कुछ ट्राई करते हैं, यू शुड ट्राई। एक बार आपकी स्टडीज पहले हो जाती है कि भाई आपका जो भी आपको लगता है कि एक बार आपका एनालिसिस हो जाता है, एक बार एग्जाम देके बैठिए, नहीं तो घर पे ही कर लीजिए। देखिए अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपका मतलब सेल्फ
होगा कि यार मेरे को ये क्लियर करना है, तो यू शुड प्लान इन दैट वे कि भाई आप खुद की ईमानदारी से जानते हैं कि यार मैंने कितने नंबर लाए, और खुद का जानते हैं कि यार मेरी कैपेबिलिटी कितनी है अगर मैं इस एग्जाम को राइट ऑन करूँ। तो यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इसको कैसे क्या वर्कआउट करना है, कैसे क्या चीजें अपन को चीजें देखनी है। सो दैट्स द पॉइंट आई नीड टू कन्वे ऑन माई थिंग। सेकेंडली एग्जाम डेज, भाई मेरा पॉइंट जो है, तो कैन यू प्लीज चेंज द पीपीटी? यस, और यू हैव गिवन मी द राइट्स। It's why students don't clear. Can you please just change after this? Why student don't clear, ये एक बेसिक चीज होती है कि भाई किसी ने लेट स्टार्ट किया है, किसी ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, किसी ने रिवीजन नहीं बनाया है, कुछ हो सकता है कि भैया मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कोई मैं अपना भाई रूटीन ही नहीं बना पा रहा हूँ। वो सारी चीजें मैंने पॉइंट आउट की है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि भाई किसी ने लेट स्टार्ट किया तो नो, भाई आपको आपका टाइम डिसाइड करना है, जितना टाइम आपको मिल रहा है दैट शुड बी परफेक्टली टाइम, आप उसको अकॉर्डिंगली टाइम आप करके दो। ओके, सेकेंडली स्टडी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि दैट वीडियो लेक्चर्स आपको अगर लास्ट टाइम पे अगर आप 3 घंटे दे रहे हो या 4 घंटे या 2 घंटे, वट एवर टाइमिंग भी अगर आप किसी सब्जेक्ट पे दे रहे हो, तो वट एवर भी द टाइमिंग विल बी, लास्ट टाइम पे आप कुछ भी दे रहे हो तो आप उसको एनालिसिस करो कि आपके लिए कितना इफेक्टिव है या क्या नहीं। ओके, सो अगर आपको लगता है कि यार वीडियो लेक्चर मेरे को 3 घंटे, तो लास्ट टाइम पे तो 3 आवर्स इज ऑल्सो एन, मतलब बहुत बड़ा होता है। 3 घंटे अगर मैं किसी वीडियो लेक्चर पे दे रहा हूँ, तो ये जो भी आपको पढ़ना है या जो भी करना है, बेसिक चीज कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखनी है, यू शुड टेक इन द टाइमली टाइम, कि अगर मेरे को 1.5-2 महीने पहले लेना है, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट रिविजन टाइम पे भी उस चीज को देखे जाना है कि जहाँ पे मेरे को अब समझना है। उसके लिए आप फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, हाँ भाई ये मेरे को समझाएगा, दैट विल बी इजी ऑन माई एंड, ये मेरे को बताएगा तो दैट विल बी इजी ऑन माई एंड। सो यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को कब समझना है, किससे समझना है। सेकेंडली राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है तो यू शुड टेक द राइटिंग कि भाई मेरे को कब राइटिंग स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है। पेपर में एक बार लिख लेता हूँ कि हो सकता है कि यार मेरा पिछला अटेम्प्ट में मैंने पेपर ही छोड़ दिया, करा सब सही था मैंने, भाई 60 नंबर का मेरा पेपर आया और कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स, बट जो लास्ट में आया भाई मेरा पेपर ही छूट गया, आता नहीं था। तो ये चीज जो बेसिक मिस्टेक्स है, जब भाई बेसिक थिंग्स है कि जहाँ पे मेरे मार्क्स जा रहे हैं वो तो मेरे को छोड़ना ही नहीं, कि सिंपल से मेरी थिंग है यार, ये जो चीज मेरे को लग रही थी यार मैं आता था पर नहीं करके आया, वो चीज कभी कम होना ही नहीं चाहिए एग्जाम के बाद। मतलब आपको जो आता है आप या तो टाइम मैनेजमेंट सेटिंग से सीखो कि आपको आ भी रहा है, लिख भी नहीं पा रहा हूँ, लेंदी पेपर कुछ भी नहीं है, वी शुड ट्राई एटलीस्ट जो आ रहा है वो अपन लिखें, और उस स्पीड में लिखे कि यार इतना टाइम हो गया कि मेरे को नेक्स्ट नंबर के लिए इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि यार मेरे को पेपर तो मेरा 100% मेरे को क्लियर करना ही है। सेकेंडली होता है कि यार मैंने एक बार पढ़ा, आज की मैंने 3-4 महीने पहले पढ़ा था, अब उसका रिवीजन करा, मैंने उस टाइम मार्किंग ही नहीं करी, तो क्यों नहीं करी भाई? यू शुड प्लान, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप समय दीजिए, उसको प्लान करिए कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, ये मेरे को लगता है कि यार दिस इज द कैटेगरी ए बी सी। वो आपको गाइड भी करेंगे, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए ए, कौन सा मेरे लिए बी है, कौन सा मेरे लिए सी कैटेगरी है। तो यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि भाई मेरे लिए रिवीजन, ये वापस जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन, सपोज आज मैंने 8 अगस्त को इसका प्लान किया था, तो अब मैं इसको डायरेक्टली 11 अक्टूबर को लूंगा या 25 अक्टूबर को लूंगा, या 11 अक्टूबर को मैं एक बार सेकंड डिवीजन में लूंगा, जब मेरे को इसको 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा। तो यू शुड थिंक, तब मैं सी चीजें हो सकता है मैं इग्नोर करूं, या जो भी चीजें, जो भी आप एग्जाम पैटर्न बनाते हैं या जो भी आप चीज करते हैं, दैट यू नीड टू थिंक पॉइंट ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू शुड प्लान, यू शुड एग्जीक्यूट, यू शुड थिंक। सेकेंडली कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, ग्रुप 2 हमेशा पेपर का अपन को देना है। यू कैन चेंज द स्लाइड। यश, बेसिकली जो मैंने आपको बेसिकली मेजरली ब्रीफ करना था, दैट आई हैव ब्रीफ की मैंने कर दिया है। नो आई विल गो कि अगर कोई चीज स्किप नहीं हो, आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिकॉज नवीन सर इज आल्सो देयर। सो बेसिकली मैं नेक्स्ट 10 to 15 और लूंगा आपसे, जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ अगर पॉइंट्स रहते हैं तो आई विल कवर दैट, आई विल ट्राई टू मुरली कवर। सर क्वेश्चन बाद में लेंगे, क्वेश्चन पहले मत लीजिए। ओके सर, क्वेश्चन सर लास्ट में लेंगे, जो भी अपने क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes, मैं नेक्स्ट जो भी अगर कुछ मेरा रह जाता है दैट आई विल कवर ऑन दैट पार्ट। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो बेसिकली 100 डेज का रोड मैप भी बनाया हुआ है कि उसके बाद अपना स्वॉट एनालिसिस
आई थिंक सो मेरे पास साइट का नहीं है, ठीक है चलिए वो मैं आपको वैसे ही ब्रीफ अप कर देता हूँ, व्हाट आर द पॉइंट्स थिंग्स लेफ्ट विद मी। कि सेकेंडली एक चीज मेरे रह गई थी कि नींद पूरी करिएगा आप, कि यू शुड एटलीस्ट टेक योर टाइम, कि भाई जो भी आपका होता है कि ऐसा नहीं कि मैं अपन 12 13 13 घंटे 14 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यू शुड टेक द स्लीप प्रॉपरली, कि आपको कैसे क्या रेस्ट लेना है, कि मेरा रेस्ट टाइमिंग क्या है, मतलब जो चीज आपको वापस एनर्जी दे दैट शुड बी इन द प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सेकेंडली थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें रहती है कि थोड़ा सा एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच जाए, या क्वेश्चन पेपर जो आपको स्टार्टिंग के 10 15 मिनट्स होते हैं यू शुड रीड, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें, या भाई एक प्रॉपरली पढ़ें कि यार 10 15 मिनट्स में मेरा नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स का मेरा जो रोड मैप है पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये मैं करूंगा। सेकेंडली पेपर आपको वैसे भी, अगर जो एक पॉइंट और है कि आफ्टर एग्जाम में पेपर डिस्कशन करता हूँ, तो ठीक है वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको पॉजिटिव साइड हो तो होनी चाहिए, नहीं है उसमें अगर नेगेटिविटी आती है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके कुछ और पेपर्स है, क्योंकि जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई है, तो यू शुड फोकस ऑन डेट मोर कि भाई हाँ मेरा आज पेपर हुआ है तो उससे पहले मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी करूँ। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी नीड शुड कवर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लास्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, दैट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज दैट जब भी स्टार्ट करो इट्स बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बट आपको प्लानिंग लेनी पड़ेगी। सीए इज एन मोस्ट स्टडी एंड प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट पेपर, जहाँ पे आपको स्टडी तो करनी ही है, खुद का एनालिसिस आप जितना करोगे यू शुड इजीली क्रैक दैट। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है दैट मैंने नवंबर में छोड़ा था एंड आई हैव द अराउंड 4 to 6 months जहाँ पे मैंने 2 3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जो क्लासेस भी नहीं ली थी, दैट आई ट्राइड कि मैंने खुद के लेवल पे उसको पढ़ा, खुद के लेवल पे समझा, फ्रेंड्स की हेल्प ली, टीचर्स की हेल्प ली, सीनियर्स की गाइडेंस ली, एंड दैट आई हैव कंप्लीटेड। तो ऐसा नहीं था, पहले मेरा भी ये था कि मैं एक ग्रुप ही दूंगा, या नहीं यार मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास कोचिंग नहीं, बट एट दैट टाइम मेरे को सीनियर की गाइडेंस मिली कि नहीं पेपर तो दो, एटलीस्ट आपको ये तो पता पड़ेगा दैट हाउ द थिंग्स आर कमिंग, कुछ तो पढ़ा होगा आपने। तो ये था, तो मैंने कहा चलो पेपर देते हैं, तब आई हैव शेड्यूल माई माइंड। फिर मैंने मेरी प्लानिंग में चेंज किया, मतलब दिसंबर से मेरे पास मई की प्लानिंग थी, आई हैव चेंज इन माई प्लान कि भाई हाँ मेरे पहले मेरा फर्स्ट ग्रुप का ही प्लानिंग था, देन आई सडनली चेंज फॉर द ग्रुप 2, मैंने एकदम से बीच में मेरा प्लानिंग चेंज कर लिया कि यार अब ये मेरे को सब्जेक्ट करने हैं, तो उसको मैं कैसे क्या करूंगा। तो दैट हाउ आई प्लान माई स्टडीज। हो सकता है कि भाई लॉ में मेरे को एक शायद उस टाइम लॉ था, तो एक कोई नंबर था जो 4 नंबर का आता था, उसमें मेरे को 20 25 आवर्स लग रहे, तो दैट आई डिसाइडेड टू स्किप। सो दैट्स टोटली अबाउट द स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट मैनेजमेंट। आई थिंक सो इट्स वॉज ग्रेट टू विथ यू, एंड आई एक्सपेक्ट दैट जो भी आज करें यू शुड गेट द गुड जर्नी इन योर अपकमिंग सीए लाइफ। तो आप जितना डेडिकेटेड होकर खुद को समझेंगे और पढ़ेंगे और टाइम मैनेजमेंट करेंगे, यू शुड गेट द सीए पेपर इजीली क्लियर। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी कुछ भी डाउट आता है, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल शेयर विद माय नंबर विद माय सीआईआरसी टीम। अगर कुछ भी आता है देन आई विल यू कैन गाइड यू कैन कनेक्ट मी विद एनी टाइम। अदरवाइज आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट में आंसर करेंगे, आई हैव द माय सीनियर सर विद मी, नवीन सर, बाकी का वो आपको गाइड करेंगे। इन केस ऑफ एनीथिंग यू कैन लेट मी नो। It's okay from my side. Yes, you can continue. Thank you. Thank you very much, Mulli Atal sir, for your guidance and support. Now, friends, we have with us Naveen Vigrecha sir. He is the past chairman of Bhilwara branch. I request him, please take a session, sir. Thank you, sir. Thank you. I'm audible. Yeah, sir, you are audible. Thank you very much. थैंक यू मुरली भाई, बहुत कुछ आपने कवर कर लिया, बहुत कुछ मेरे लिए बचा नहीं है, बट एनीवे आया हूँ तो कुछ बोल के ही जाऊंगा। फ्रेंड्स, मुरली जी ने आपको जो भी बताया वो ये समझिए कि एग्जाम से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका माइंडसेट आपके साथ साथ चलना चाहिए कि यस मुझे एग्जाम देना है एंड दिस इज माय इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये मेरा करियर ओरिएंटेड एग्जाम है, राइट। आपने प्रिपरेशन भी कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन जो 3 आवर्स जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम के जो 3 आवर्स होते हैं उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा। अभी हमने फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा, हम चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लें, टीमें कितनी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वो जो
90 मिनट्स के अंदर वहाँ जो होने वाला है वही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो हमारे साथ भी यही है कि जो 3 आवर्स के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं, जो करेंगे, वही हमारा, मुझे कितना ही नॉलेज है लेकिन अगर मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, मैं वहाँ लिख नहीं पाया, तो नो वन विल नो कि मुझे कितना और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। तो ये जो 3 आवर्स जो हैं, आज जो मैं बात करूंगा वो यही बात करूंगा कि हमें इस 3 घंटे के अंदर हमको क्या क्या चीजें हमारे साथ हमारे माइंड में होनी चाहिए। जैसा मुरली जी ने बताया कि हमको स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी के 3 रूल है, एंड दैट इज KPOT। अगर आपके एग्जाम में ये 3 चीजें आपके पास है, नॉलेज, प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट, अगर ये 3 चीजें आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये तीनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। नॉलेज भी आपको होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट इस गलतफहमी में मिथ में रह जाते हैं कि नहीं, सीए एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे जैसे लिख के आ जाओ। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। प्रेजेंटेशन, हाँ, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सुंदर राइटिंग में, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, ऐसा नहीं है। इट शुड बी रीडेबल। लेकिन प्रेजेंटेशन का बहुत मायने है। उस प्रेजेंटेशन में हमको और क्या करना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको एक सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट ने पेपर शुरू किया, इट वाज अ कॉस्टिंग पेपर। उसने पहला, उस वक्त, उस समय में 15 मिनट जो आपको अभी जो मिलते हैं रीड आउट करने के लिए, वो नहीं मिला करते थे, डायरेक्ट यू कैन स्टार्ट। तो उस पर्सन ने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, उस क्वेश्चन में उलझते गया और अल्टीमेटली पूरे टाइम, यू वोंट बिलीव, ये मेरे आंखों देखी बात है, फुल 3 आवर्स वो पर्सन, वो कहते हैं ना आजकल वो एक गेम चलता है, आपने ध्यान दिया हो तो, ब्लू वेल करके, उससे आप निकल नहीं सकते हो। वो पर्सन, वो स्टूडेंट उस चीज से निकल ही नहीं पाया और 3 घंटे तक वो उसी के अंदर रहा। वाई? बिकॉज कि उन्होंने इस टाइम को मैनेज नहीं किया। फर्स्ट 10 to 15 मिनट के अंदर ही हैज टू डिसाइड कि मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको अगर लग रहा है, जैसे मुरली ने भी बताया, हमारे सेशन चेयरमैन ने भी बताया, कि अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो आप एक पेज छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, उस क्वेश्चन में मत अटकिए। ये सबसे, मैं आपको आज जो टिप्स बता रहा हूँ आपको बहुत इजी लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और वही आपके कम से कम 5 to 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज करेगी। क्योंकि बाकी मार्क्स तो आपको अपने नॉलेज से, आपकी स्टडी से लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये 5 to 10 मार्क्स जो आएंगे, ये आपको मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसको अगर आप एज इट इज इंप्लीमेंट करेंगे तो 5 to 10 मार्क्स आपके 100% इंक्रीज होंगे। सो नॉलेज, प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आपको रखना पड़ेगा। यस जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब आपको लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हो आप, हम लोग सीए का एग्जाम दे रहे हैं और आप हमको 4th क्लास 5th क्लास की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को रीड करिए, केयरफुली रीड कीजिए। इट्स नॉट अ जॉक माय डियर फ्रेंड्स, ये जॉक नहीं है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं, आप पीपीटी के अंदर देख सकते हैं। स्पेशल वर्ड है एक्सप्लेन, डिस्कस, स्टेट, कैलकुलेट, कमेंट, डिफरेंशिएट। ये वो कॉमन वर्ड है जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। काइंडली एक्सप्लेन दिस, प्लीज स्टेट दिस, ये इस तरह के क्वेश्चन है। हमको इसका मीनिंग समझना है। मैंने अभी जो आपको टाइम मैनेजमेंट की बात करी, ये जो मीनिंग है, आप अगर इस मीनिंग को समझ जाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली होगा। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज द एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन मीन्स आपको उसका मीनिंग, उस वर्ड का, उस सेंटेंस का आपको मीनिंग बताना है, कंसेप्ट बताना है उसका कि व्हाट इज दिस, और उसको साथ में उसके एक्सप्लेनेशन देना है, लेकिन इट्स इन ए वेरी शॉर्ट वे। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि आप 2 से 3 पेज पढ़ दो। एक्सप्लेन का मतलब आपको वेरी कंसाइज वे में उस चीज को बताना है कि व्हाट इज दिस, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डिस्कस। नाउ देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन एंड डिस्कस। दिखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन अगर डिस्कस वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, इट इज टू बी गिवन इन अ लार्ज वे। आपको जो चीजें एक्सप्लेनेशन में देनी थी वही चीजें यहाँ देनी है, बट इट शुड बी इन अ लार्ज वे। आपको उसकी डेफिनेशन भी ढंग से लिखनी है, उसके पॉइंट्स, उसके फैक्ट्स,
उसके रीजंस, ये सारी चीजें देनी है, बट इन अ लार्ज वे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इफ इन अ क्वेश्चन इट इज वर्ड एक्सप्लेन वर्ड अगर आपको आए तो आप मान के चलिए आपको शॉर्ट आंसर 5 to 7 लाइंस के अंदर आंसर देना है। बट अगर डिस्कस वर्ड अगर आता है तो आपको कम से कम मान के चलिए एटलीस्ट 1 पेज इसके लिए आपको कम से कम, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देना पड़ेगा, डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन करनी, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ थर्ड वाइज स्टेट। बहुत से लोग स्टेट और एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन। स्टेट अगेन इट इज अ डायरेक्ट, यू हैव टू गिव डायरेक्ट वर्ड्स। स्टेट का मतलब होता है, सपोज आपको पूछा कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ, व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पूरा लॉ समझाने की जरूरत है, आपको स्टेट में लिखना है कि ग्रेविटी लॉ क्या चीज है। 3 या 4 लाइन के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है, नॉट 1 पेज, नॉट हाफ पेज। स्टेट का मीन्स टू द पॉइंट, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जो एग्जैक्टली उसका मेन पॉइंट है, आपको स्टेट के अंदर वही चीज लिखनी है। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। अब आप देखिए कैलकुलेशन के अंदर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। मैं कई बार स्टूडेंट्स से जब मैं सेमिनार में बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आधा तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, पेज चेंज मत कीजिए सर, पुराना ही रहने दीजिए। आधा तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, आधा रफ वर्क में करते हैं। हम लोग जो फाइनल आंसर जो लिखते हैं उसके अंदर बहुत सी चीजें स्केप कर जाते हैं। और आपको पता है कि सीए के अंदर मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। इफ यू डोंट राइट द स्टेप देन यू विल नॉट गेट द स्टेप मार्किंग। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने आधी चीजें कैलकुलेटर पे कर दी और आधी चीजें रफ में कर दी और आपने शॉर्ट आंसर लिखा। 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपने मुश्किल से जो चीजें लिखी, एग्जामिनर वो ढूंढता है उसके अंदर कि मार्क्स दूंगा, क्योंकि वो स्टेप लिखी हुई नहीं है, तो वो आपको 4 और 5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 10 या 15 में। आपको लगता है क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही था, पेपर एकदम सही गया, सारे क्वेश्चन, स्पेशली मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि क्वेश्चन मेरे सारे सही थे, फिर मार्क्स कम क्यों आए? मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा जो रीजन मैं समझ पाया, वो रीजन ये है कि हम लोग कैलकुलेशन पार्ट जो है वो स्किप कर जाते हैं। तो मैं कॉस्टिंग के पेपर के लिए स्पेशली बात करूंगा कि नथिंग इन रफ, कॉस्टिंग के अंदर रफ कुछ होता ही नहीं है। आपको जो कुछ भी लिखना है आपके क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है, वो रिलीवेंट आपको लगे चाहे नहीं लिखे, बट यू हैव टू राइट इन द मेन क्वेश्चन ओनली। वहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग वहीं से आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कमेंट। नाउ अगेन कमेंट जो वर्ड है इसके अंदर आपको सारी चीजें आ गई। अब तक हमने जितना पढ़ा, स्टेट, एक्सप्लेन, सारी चीजें इस कमेंट में आ गई। आपको इसके अंदर ईच एंड एवरी चीज लिखनी है। उसमें अगर कोई लॉ, एप्लीकेबल लॉ है, वो लॉ के बारे में लिखना है, उस फैक्ट्स जो है फैक्ट्स के बारे में लिखना है, और अपना कंक्लूजन, स्पेशली कमेंट्स के अंदर कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है कि इस पूरे क्वेश्चन का आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या है। एंड इट शुड बी इन कंक्लूजन जो वर्ड है, इट शुड बी इन बोल्ड अंडरलाइन वर्ड कि इस पूरे क्वेश्चंस का कंक्लूजन ये है। कई बार एग्जामिनर सिर्फ कंक्लूजन देख के भी आपको मार्क्स देता है कि आपका अगर कंक्लूजन सही है इट मींस आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा है और आपने इसको अच्छी तरह लिखा है। डिफरेंशिएट, नाउ अगेन ये बहुत टिपिकल चीज है। क्वेश्चन में कई बार हमें डिफरेंशिएट वर्ड लिख रहा है, काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो कंसेप्ट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी। नाउ व्हाट विल डू, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वो लिखेंगे व्हाट इज ए, आधा पेज उसमें भरेंगे कि ए क्या चीज है, देन वो आधा पेज लिखेंगे व्हाट इज बी, एंड देन वो 3 या 4 लाइन के अंदर डिफरेंस लिखेंगे ए और बी में डिफरेंस क्या है। यही हम सारी गलती करते हैं। आपको मैक्सिमम डिफरेंस लिखना है, ए और बी में डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन उन्होंने मांगा ही नहीं है, स्टेट उन्होंने मांगा ही नहीं है, कंसेप्ट उन्होंने मांगा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिफरेंस है। आप टेबल बनाइए, एक तरफ लेफ्ट में ए लिखिए, राइट में बी लिखिए और पॉइंट वाइज डिफरेंस लीजिए। हम लोग पूरे वर्डिंग लिख देते हैं कि ए क्या चीज है, बी क्या चीज है, और डिफरेंस में हम ए के 2 लाइन लिखते हैं, वो सारे मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि डिफरेंस आपने कुछ लिखा ही नहीं अंदर। तो ये जो वर्ड, जो स्पेशली वर्ड है, एक्सप्लेन, डिस्कस, स्टेट, कैलकुलेट, कमेंट एंड डिफरेंशिएट, इन वर्ड को बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन के अंदर पढ़िए, उसके हिसाब से आंसर दीजिए। कितना आंसर देना है आपको, हाफ पेज में आंसर देना है, 1 पेज में देना है, 4 लाइन में देना है। अभी जैसे मुरली जी ने भी बताया कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग उसके अंदर, हमको चूंकि उसकी स्टडी बहुत अच्छी है, वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है और वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, तो हम उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पेज, 2 पेज भर देते हैं, बहुत लंबा जरूरत। तो एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाता है और इरिटेट हो जाता है कि इतना बड़ा आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, देन अगेन वो उस चीज को कंसीडर नहीं करता है, तो उसका एक माइंडसेट बन जाता है। शुरू में मुरली जी ने बताया, सेशन चेयरमैन जी ने बताया कि हमको एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। माइंडसेट के साथ अगर आपका आंसर चलेगा ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स पूरे देगा। और स्टार्टिंग में अगर आपने उसका माइंडसेट से विपरीत काम कर लिया, तो आप मान के चलिए आपका जो इंप्रेशन, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो आपका इंप्रेशन ही वो पड़ गया। उनको, एग्जामिनर को लगता है कि यार ये स्टूडेंट ने फालतू बातें बहुत लिखी है, इसका मतलब इसको मेन चीजें आती नहीं है। उसका माइंडसेट बन गया और उस माइंडसेट से वो आगे। अब हो सकता है आपने आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सीखा हो, लेकिन चूंकि एग्जामिनर का माइंडसेट आपके लिए बन चुका है कि आपने जो लिखा है यू आर नॉट राइटिंग द रिलेवेंट पॉइंट्स, देन वो आपको आगे भी मार्क्स वही देगा। तो स्पेशली सबसे पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, और स्पेशली उसमें ध्यान रखिए कि जो चीज पूछी गई है। कई बार हमें लगता है कि यार 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में खत्म हो रहा है, एग्जामिनर क्या नंबर देगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 लाइन में भी हो सकता है, बिकॉज जो एग्जैक्टली उसने पूछा है अगर वो लिखेंगे तो एग्जामिनर तो बहुत खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यस दिस इज द रिलेवेंट पॉइंट, द स्टूडेंट हैज रिटन द रिलेवेंट पॉइंट। तो उसका माइंडसेट वही चलेगा, आपकी पूरी जो आंसर बुक है वो उसी माइंडसेट से वो आंसर चेक करेगा कि नहीं इन्होंने सब कुछ सही लिखा है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, स्टेट का मतलब होता है व्हाट, क्या चाहिए। एक्सप्लेन का मतलब व्हाई एंड हाउ, ये क्यों है और कैसे है। डिस्कस का मतलब होता है कंप्लीट एनालिसिस। कैलकुलेट का मतलब होता है वर्किंग प्लस आंसर। कमेंट का मतलब होता है प्रोविजन प्लस एप्लीकेशन एंड प्लस कंक्लूजन। और सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन मींस पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस। ये जो वर्ड्स हैं ये पूरे आपके सारे, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, सारे क्वेश्चन पेपर के सार है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। इससे प्रीवियस स्लाइड जो अभी चल रही थी सर, ऑलवेज गिव वर्किंग नोट, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि आपको जो वर्किंग नोट है वो मेन बुक के अंदर ही देना है, आपको रफ में कुछ भी नहीं लिखना है, स्पेशली कॉस्टिंग और एफएम के अंदर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन है, सपोज कॉस्टिंग के अंदर आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आपको उस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ डेप्रिसिएशन, एसिड्स की वैल्यू दी हुई है 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो हमारे दिमाग में आ गया कि डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए है। तो वो जो एक अकाउंट बनाना होता है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होता है, वो लोग हम बनाते ही नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है 10 लाख का 10% 1 लाख है, बनाना क्या। लेकिन अगर स्टेप मार्किंग के अंदर उसके 2 मार्क्स दिए हुए हैं, देन यू विल नॉट गेट दिस 2 मार्क्स, बिकॉज आपने वो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया ही नहीं है। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरह से बहुत से जो पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से जो शॉर्ट नोट होते हैं वो लोग हम बनाते ही नहीं है, बिकॉज फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जो जो चीजें आने वाली होती है वो आधे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके और उसके अंदर लिखते हैं और फंड फ्रॉम ऑपरेशन वहां से निकाल लेते हैं, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, कैश फ्लो टेली हो जाए, कैश फ्लो बन जाता है, बैलेंस शीट टेली हो जाती है। हमको लगता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट कर रहे थे 15 नंबर 16 नंबर आएंगे, लेकिन जब एग्जैक्टली एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो कम से कम 7 to 8 मार्क्स के स्टेप मार्क आपके गायब होते हैं, क्योंकि आपने वो अकाउंट बनाया ही नहीं है। ये जो मार्क्स कम आते हैं ना, हम सोचते हैं हमारे 70-80 तो आने चाहिए और मार्क्स आते हैं 30-40, इसका मेन रीजन स्टेप मार्किंग है, इसका मेन रीजन वर्किंग नोट्स है। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एग्जाम में चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे कॉस्टिंग का हो, आपको वर्किंग नोट उस पेपर, उस मेन आंसर बुक का पार्ट ही बनाना है, रफ में कुछ लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, अब मैं बात करता हूँ स्पेशली लॉ और टैक्स की और ऑडिट की। ये स्टेप है, फर्स्ट है आपका रिलीवेंट प्रोविजन, देन सेक्शन, थर्ड फैक्ट्स, फोर्थ एनालिसिस एंड लास्ट वन इज कैलकुलेशन। ऑडिट और टैक्स के अंदर आपको इसी सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन करना है, आंसर इसी सीक्वेंस लिखना है। जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके अगर उसका जो रिलीवेंट प्रोविजन है सबसे पहले वो लिखिए, रिलीवेंट प्रोविजन वर्ड को लाइट अंडरलाइन करके। देन अगर आपको सेक्शन ध्यान है, उसका रूल अगर ध्यान है, प्रोविजन अगर ध्यान है, सेक्शन नंबर अगर ध्यान है, तो ही उसके अंदर वो सेक्शन लिखें। प्लीज फ्रेंड्स माइंड इट, अगर आपने गलत सेक्शन लिखा है तो वो एग्जामिनर के माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर देता है, उसको लगता है कि ये मन से फेंका फेंकी कर रहा है, इसको सेक्शन आता नहीं है। तो सेक्शन स्पेशली इनकम टैक्स के अंदर और लॉ में सेक्शन आप तभी लिखें जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये सेक्शन सही है, अदरवाइज सेक्शन नहीं लिखें, केवल उसके प्रोविजन लिख लें, क्योंकि प्रोविजन के अंदर आप एक दो वर्ड ऊपर नीचे करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन सेक्शन अगर आपने गलत लिख दिया तो इट विल बी कंप्लीटली वेस्ट। देन फैक्ट क्या है, जो भी प्रॉब्लम दी है उसकी फैक्ट क्या है,
फिर आपने उसका क्या एनालिसिस किया, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या है। इसी स्टेप्स के अंदर आपको वो आंसर लिखना है, तब जाके आपका वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे अपना जो भी क्वेश्चन था उसका सीधा आंसर 4 लाइन 5 लाइन आधे पेज के अंदर आंसर लिख दिया। यू शुड बी राइट इन द पैराग्राफ वाइज, कि फर्स्ट आपका पैराग्राफ है वो प्रोविजन से रिलेटेड होना चाहिए, चेंज द पैराग्राफ, देन आपका सेक्शन या प्रोविजन अगर आपको याद है वो लिखिए, देन अगेन चेंज द पैराग्राफ, फैक्ट्स लिखिए, चेंज द पैराग्राफ, एनालिसिस लिखिए, चेंज द पैराग्राफ, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। इस तरह से आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी इजी होगा। आप देखिए एक पूरा पेज भरा हुआ है जिसमें कहीं भी आपने पैराग्राफ नहीं है, आप पूरा पेज पढ़ेंगे, आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार आप 4-5 लाइनें छोड़ देंगे उसको, क्या ठीक है। लेकिन अगर वही आपने बुलेट पॉइंट या आपने पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है तो पढ़ने में इजी रहेगा। उसमें से अगर वो 4, सपोज आपने उस क्वेश्चन को, उस आंसर को 5 पैराग्राफ में लिखा, उसने अगर 3 पैराग्राफ भी पढ़ लिए और वो अगर रिलीवेंट सही हुआ, देन ही विल अलॉट यू द 100% मार्क्स। उसको लगेगा कि नहीं इसने सारे पॉइंट सही लिखे। तो स्पेशली इस बात का विशेष ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम है 1.8, मैंने आप देखिए 3 आवर्स आपको मिलते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, 1.8 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 1.8 फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के ऊपर आपको 1.8 मिनट देना है, इससे ऊपर मिनट नहीं देना है। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए कि आपके उस क्वेश्चन के अंदर आपको कितना टाइम लगना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आपने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर लिए, आपको 6 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन आपने लास्ट में से ही कर दिए। वही जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके मार्क्स को एकदम काटते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पैरेलल टाइम दीजिए, समान टाइम दीजिए और समान वे में लिखिए, आपको मार्क्स। कई बार हम क्या करते हैं 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर दिया, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको ऐसा लिख देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब वो आपने किया नहीं किया, बेकार है, उसका कोई यूज ही नहीं करने का। उसको भी पूरा टाइम दीजिए। और अगेन आई रिपीट, 100% पेपर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। वो इफ यू वांट टू गेट 100%, देन यू हैव टू गिव 100%। अगर आपने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो 10 मार्क्स तो आपके वैसे भी कट गए। यू विल नेवर एक्सपेक्ट 100% मार्क्स, 90% मार्क्स ही आएंगे। लेकिन वो जो आपने अगर थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा है, हो सकता है उसके अंदर भी आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। शुरुआत से प्लानिंग आपको यही करनी है कि सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए और बैलेंस वे में अटेम्प्ट हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हो गया। नेक्स्ट 1.8 मिनट जो लिखा था, नेवर लीव क्वेश्चन इवन अ पार्शली करेक्ट आंसर। कई बार हमको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, स्पेशली अभी जैसे मुरली भाई ने बताया कि 3-4 पार्ट है आपके, स्पेशली जब आपका चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पार्ट अच्छी से दीजिए, 3rd वाला पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। आप जो जितना आपको आता है उतना लिखिए, वो भी कभी कभी मार्क्स देके जाता है। बिकॉज एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, अगर आपने 2 पार्ट सही लिखे हैं और वो एकदम करेक्ट है तो एग्जामिनर सोचता है उसका 3rd पार्ट भी सही होगा। कई बार एग्जामिनर पढ़ पाता है, कई बार नहीं पढ़ता है। दिस इज अ फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सबको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एग्जामिनर के पास टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में उसको सारे आंसर्स चेक करने होते हैं। तो 100% पढ़े ये जरूरी नहीं है, वो ग्रीस पढ़ता है। आपने 10 पॉइंट लिखे, उसमें से वो 4 पॉइंट पढ़ता है, 4 पॉइंट उसको अगर अप टू द मार्क्स लिखते हैं, उस 4 पॉइंट के बेस पे वो 10 पॉइंट का एनालिसिस करके उसके बेस पे वो मार्क्स देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। रफ वर्क वैसे तो करना नहीं है, लेकिन अगर करना भी है तो जो जहां पर भी आप करें उसको रफ लिख के उसको काटे जरूर। कई बार देखने में आता है कि हम लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो। कुल मिला के आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा भी कंफ्यूज है उसको इरिटेट कर दिया, देन वो सारा इरिटेशन जो है वो आपकी कॉपी के ऊपर ही निकलेगा, ये मान के चलना। तो एग्जामिनर बिल्कुल कूल माइंड में आपकी कॉपी चेक करे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। लास्ट के 10-15 मिनट में आपको क्या करना चाहिए उसके मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। 4th और 5th क्लास के बच्चों को हम लोग कहते थे किसी जमाने में कि प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम लोग सीए में हैं, फिर भी कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर गलत डाल जाते हैं। प्लीज माइंड क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल सही लिखें आप। और लास्ट के जो 10-15 मिनट से ये जो मैंने बुलेट पॉइंट बताए हैं इसको विशेष ध्यान रखें। चेक ऑल द क्वेश्चन नंबर,
आपने क्वेश्चन नंबर सही लिखे हैं और सारे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल प्रॉपर लिखे हैं। रीचेक द कैलकुलेशन एंड फाइनल आंसर। अगर आपका फाइनल आंसर में कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करें। कई बार एक जीरो की गलती से आगे के सारे स्टेप्स गलत हो जाते हैं। सपोज यू हैव टू राइट 23 lakhs और गलती से आपने उसको जीरो कम कर दिया, 2,30,000 हो गया। उसके बेस पे आपका जो पूरा क्वेश्चन आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो पूरा आंसर गलत है। बिकॉज 23 लाख का जो स्टेप मार्किंग है वो तो गलत हुआ ही है, उसके आगे के जितने स्टेप मार्किंग है वो सारे गलत हो गए, क्योंकि एग्जामिनर केवल स्टेप मार्किंग की फाइनल जो फिगर है उसको चेक करता है। अगर वो राइट है तो वो राइट करेगा, गलत है तो गलत करेगा। ओनली बिकॉज ऑफ 1 जीरो, जो आपको 23 लाख लिखना था आपने गलती से 2,30,000 लिख दिया, उस एक जीरो का इफेक्ट आपके पूरे क्वेश्चन पे होगा और वो पूरा क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। हम नहीं कह सकते हैं सर हमारा कंसेप्ट तो सही था, कैलकुलेशन सही था। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि वो स्टेप्स अगर सही है या वो स्टेप लिखी हुई है तो ही वो आपको मार्क्स देगा। अगर वो स्टेप नहीं लिखी है, गलत लिखी है, देन इट विल मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे ही कटेंगे। मेक श्योर नो पेज हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक। अगर लेफ्ट कोई है तो उसको क्रॉस करिए। कंफर्म टोटल क्वेश्चन कंप्लीटेड होना चाहिए। वर्किंग नोट, कोई अगर लास्ट मोमेंट में भी आपको लगता है कि ये वर्किंग नोट बनाने से रह गया है तो आप साइड में ही बना सकते हैं, छोटा सा बना सकते हैं, पर बनाइए जरूर। एक और चीज है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सपोज पेज की 4 या 5 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो उसके उसके वहीं से इतनी इतनी आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट आपका बहुत वेल वर्थ है। आपको हर बार नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ये मान के चलिए। किसी भी हालत में आप रनिंग पेज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट मत करिए, किसी भी हालत के अंदर। ये बिल्कुल आप एक थंब रूल बना दीजिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, आपको न्यू पेज से ही शुरू करना पड़ेगा। इन भली उस पेज की आपकी 4 लाइनें भरी हो, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे लीजिए, ताकि एग्जामिनर का माइंड सेट कंफ्यूजन नहीं रहे। कई बार वो हम क्या करते हैं, आधे पेज के अंदर क्वेश्चन हुआ, अगला पेज अगला चालू हुआ और गलती से आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाए तो उसे लगेगा एग्जामिनर के ये पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है और उसको चेक ही नहीं करेगा, बिल्कुल छोड़ देगा उसको। तो ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू पेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, रोल नंबर वगैरह चेक करने में इसमें कोई इस लेवल के फाइनल और इंटर स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है। यस नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर है, सॉरी, इसमें एक पॉइंट था। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, बिकॉज आजकल 15 मिनट जो रीड आउट टाइम मिलता है उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है। इट्स माय रिक्वेस्ट, कभी भी कंपल्सरी क्वेश्चन डोंट स्टार्ट विद द कंपल्सरी क्वेश्चन, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, चाहे वो आपको कितना भी इजी लग रहा हो। कोशिश कीजिए उस कंपल्सरी क्वेश्चन से आप पेपर को चालू मत करिए, उसको आप सेकंड या थर्ड नंबर पे करिए। फर्स्ट आप वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको लगता है कि इजी वे में लिख सकता हूं मैं, उसी से स्टार्ट कीजिए। सेकंड या थर्ड नंबर पे आप कंपल्सरी क्वेश्चन कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरी क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि आप मान के चलिए अगर कंपल्सरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है तो उसके अंदर कोई ना कोई ट्रिकी पॉइंट होगा ही होगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम भी चाहिए, तो उसको आपको इन बिटवीन में लेना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट में लेना चाहिए और ना एंड में लेना चाहिए, इन बिटवीन लीजिए, क्योंकि उसके अंदर 100% कोई ना कोई ट्रिकी पॉइंट दिया हुआ ही होगा जो हमको नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट द फॉर्मूला और रिलेवेंट प्रोविजन फर्स्ट। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी थ्योरी लिख देते हैं, पूरी रामायण लिख देते हैं, लेकिन मेन जो फॉर्मूला होता है वो लिखते ही नहीं है। कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, टैक्स की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, प्रोविजन लिखते ही नहीं है। आपने पूरी क्या कंक्लूजन था, क्या आपका एनालिसिस था, वो सब कुछ लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा, प्रोविजन नहीं लिखा। आई एम नॉट सेइंग कि सेक्शन तभी लिखिए जब याद हो, बट प्रोविजंस अगर आपको थोड़ा कम भी याद है देन ऑल्सो यू हैव टू राइट द प्रोविजन। फॉर्मूला भी आपको लिखना ही चाहिए। फाइनल आंसर जो कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, एक ये दो कॉस्टिंग में स्पेशली आप देखिए, कॉस्टिंग में अगर आप पेपर पढ़ेंगे या लॉ के अंदर पेपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर दिस इज अलाउ और नॉट, या कॉस्टिंग के अंदर भी वो आपसे पूछते हैं एक्चुअली कि व्हाट इज द, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो जो आपका कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को आप बॉर्डर लाइन करके या बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि कंक्लूजन का पूरे स्टेप में लास्ट जो कंक्लूजन होता है उसके मार्क्स होते ही होते हैं।
और स्पेशली कई बार तो कंक्लूजन लिखा ही नहीं जाता है, पूरा क्वेश्चन कर लिया आपने, सब कुछ निकाल दिया, लेकिन आपने कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, यू विल 100% लूज 1 और 2 मार्क्स फॉर द कंक्लूजन। आप कभी भी कॉस्टिंग का या टैक्स का आपके पास अगर आरटीपी आती तो आप उसमें चेक करिए, उसमें नीचे हर क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन लिखा हुआ ही होता है और कंक्लूजन के मार्क्स भी होते हैं। तो कंक्लूजन अवश्य लिखिए, उसको बोल्ड करके लिखिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, एक या दो लाइन गलत होगी, तो इंस्टेड ऑफ पूरा क्वेश्चन काटने के बजाय सिर्फ वो लाइन काटिए। लेकिन माइंड इट, बहुत ज्यादा अगर घिसपिच हो रहा है तो वो भी बहुत एग्जामिनर को इरिटेट करता है, तो वो पूरी लाइन काट के उसको आप प्रॉपर वे में नीचे लिखिए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि भावावेश में आके पूरा पेज काट देते हैं और जब फिर लिखना शुरू करते हैं फिर टाइम कम बचता है और वो पेपर जो वो हमारा छूट जाता है। तो पहले आप जो आंसर आना है आपको वो आंसर लिख दीजिए, उसके बाद जो रिलेवेंट लाइन अगर आपको लगती है कि ये इररिलेवेंट है उसको क्रॉस बाद में करिए, पहले पूरा लिख लीजिए आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर जो मैंने लिखा उसके अंदर एक या दो लाइन काम की है तो उसको काटने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन काटने की आंसर काटने की जरूरत नहीं, उसको आप चेंज, उसको जो रिलेवेंट लग रहा है आपको इररिलेवेंट है उसी को काटिए, बाकी को एज इट इज रखिए। क्योंकि एक अगर आपने एक क्वेश्चन को वापस रीराइट किया तो आप मान के चलिए कि आपका टाइम कम पड़ने ही वाला है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि कोई भी चीज गलत नहीं हो। अगर किसी तरह किसी भी रीजन से गलत भी हो गई है तो देन आपकी जो स्पीड है आपको फास्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू कवर अप द लॉस्ट टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्पेशली ये शेयर कर देना आप बाद में, इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टैक्स और ऑडिट पेपर जो है उसके लिए स्पेशली क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली बात है वो इसके अंदर मैंने लिखा है कि ऑडिट के अंदर आप स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटर ऑडिटिंग लिखनी है आपको, करेक्ट ऑडिट टेक्नोलॉजी अगर है आपको लिखना है, बुलेट पॉइंट ऑडिट पेपर जो है हमेशा बुलेट पॉइंट दीजिए, आंसर जो है ऑडिट का हमेशा बुलेट पॉइंट से ही दीजिए। बहुत ज्यादा थ्योरी एक साथ लिखने में एग्जामिनर उसको पढ़ेगा ही नहीं। एक चीज आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकल जो पेपर्स होते हैं लाइक टैक्स, कॉस्टिंग, उसके जो एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होता है। उसके अंदर थ्योरी का जो एक या दो जो क्वेश्चन आते हैं ना उस पे उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता है, एंड दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। कई बार हम लोग क्या करते हैं उस थ्योरी क्वेश्चन को बिल्कुल वेटेज ही नहीं देते हैं कि यार ठीक है 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के अपने सारा सही हो गए तो ये थ्योरी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, टैक्स और कॉस्टिंग के अंदर जो एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का आता है वो आपके मार्किंग स्कीम के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें आप कम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर वो जो एग्जामिनर है प्रैक्टिकल जो कॉपी जांच रहा है वो थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो 2-3 लाइन पढ़ के अपना दिमाग तैयार कर लेता है कि कितने मार्क्स देने, उसके हिसाब से वो मार्क्स अलॉट करता है। दिस इज द फैक्ट, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जामिनर का माइंडसेट यही होता है। तो जो प्रैक्टिकल पेपर है आपके उसके अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं उसको जरूर करिए। लेकिन ऑडिट और लॉ ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, इसके अंदर आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना है वो पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने एक साथ पूरा आधा पेज लिख दिया तो उसमें से वो आधा भी नहीं पड़ेगा, और लेकिन अगर आपने पॉइंट वाइज लिखे हैं तो वो सारा पॉइंट, सारे जितने भी पॉइंट है वो सब पड़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने अगर हाईलाइट किया है मार्किंग की मार्कर से उसको सॉरी बोल्ड अगर लाइन से किया है तो उसको स्पेशली वो पड़ेगा। और अगर वो लाइन वो प्रोविजन परफेक्ट हुआ तो आप मान के चलिए उस एक लाइन के बेस पे आपका पूरा क्वेश्चन वो एग्जामिनर उसी वे में चेक करेगा जिस वे में आपको लगता है कि यस, तो जो आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है और बिल्कुल इससे कनेक्टेड है उसको आप अंडरलाइन जरूर करिए। नेक्स्ट प्लीज। मोस्टली कहाँ मार्क्स करते हैं ये उसका एक है रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। हालांकि एग्जामिनर क्वेश्चन के बेस पे वापस चेक करके अपना कमेंट डालता है उसके अंदर कि ये क्वेश्चन नंबर ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कई बार गलती एग्जामिनर से भी हो सकती है। क्वेश्चन आपका कुछ और था, आपने क्वेश्चन नंबर कुछ और दिया, उसके बेस पे वो क्वेश्चन गलत भी कर सकता है, मार्क्स आपके कट सकते हैं। नॉट हाईलाइटिंग द फाइनल, अगर आप फाइनल आंसर जो है कंक्लूजन जो है उसको अगर आप हाईलाइट नहीं करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपके मार्क्स कटने का बहुत बड़ा रीजन है। आंसरिंग ओनली हाफ द क्वेश्चन,
मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आपको ए और बी दो दो पार्ट है, आपने एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह लिख दिया और बी पार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो आप मान के चलिए कि आपने आधा क्वेश्चन ही अटेंड किया। दोनों पार्ट को पूरा वेटेज दीजिए, पूरा क्वेश्चन अटेंड कीजिए, जितना आपको आता है उतना लिखिए, उसमें छोड़ना बिल्कुल, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो भी 0 मार्क्स आएंगे, और अगर आप कुछ लिख रहे हैं वो गलत हुआ तो भी 0 ही आएंगे, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट करने से आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो ऐड होंगे होंगे उसके अंदर। यूनिट्स वगैरह जो लिखने हैं, परसेंटेज है, नंबर है, रुपीज है, ये हम लोग कई बार लिखना भूल जाते हैं, तो इसका भी ध्यान, हालांकि इसका बहुत ज्यादा मार्क्स करते नहीं है, बट फिर भी अगर लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन है, एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन देगा कि यू आर अवेयर कि आपने परसेंटेज लिखा, नंबर लिखे हैं, सिंबल लिखा है, तो उसको एक अलग से अच्छा इंप्रेशन देता है। वर्किंग नोट्स नहीं देते हैं, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं देते हैं तो इट विल स्ट्रेट वे आपके जो स्टेप मार्किंग है वो स्ट्रेट मार्किंग उड़ेगी आपकी, और आपके मार्क्स कम ही आएंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, उसको बुलेट पॉइंट में या पैराग्राफ में लिखना है, ताकि पूरा पढ़ने के लिए वो मजबूर हो जाए एग्जामिनर कि उसको पूरा पढ़ना ही पड़े। अगर पूरी एक पेज, जैसे अपन वो जैसे पहले बचपन में ऐसे लिखते थे ना, पूरा पूरा ऐसे, वो इतना बड़ा अगर ऐसे लिखेंगे तो वो आधा पेज भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपने उसको 3-3, 4-4 लाइन का पैराग्राफ बनाया तो ही हैज और शी हैज टू रीड केयरफुली। राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर लिखने के चक्कर में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन राइटिंग आपकी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो थोड़ी देर में वो इरिटेट होकर फिर वो सारी चीजें वो क्रॉस करता जाएगा कि उसको कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। तो राइटिंग आपकी इतनी सही होनी चाहिए कम से कम कि उसको आराम से पढ़ा जा सके। और कंक्लूजन तो मैंने लिखा ही है आपके, स्पेशली लॉ और ऑडिट में और टैक्स के अंदर कंक्लूजन जरूर लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जामिनर को क्या चीज पसंद है, इसके पहले भी जो स्लाइड थी वो ये थी कि आपके मार्क्स क्यों करते हैं। ये है अल्टीमेटली आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का, कैसे आप इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे वो आपके राइटिंग से, आपके क्वेश्चन आंसर लिखने की तरीके से, आंसर लिखने के तरीके से इम्प्रेस होके आपको सही मार्क्स दे सकता है। क्लीन, जहां तक हो सके क्लीन लिखिए। लॉजिकल सीक्वेंस, इलॉजिकल चीजें बिल्कुल मत लिखिए, लॉजिकल सीक्वेंस लिखिए। जितने, अगर आप उसने शॉर्ट में पूछा है तो आप शॉर्ट लिखिए, एक्सप्लेनेशन पूछा है तो पूरा एक्सप्लेन कीजिए। रिलेवेंट कीवर्ड्स, जो जितने भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में आपने 5 या 6 कीवर्ड्स को अंडरलाइन किए हैं और वो 5 6 अंडरलाइन वाले जो कीवर्ड्स है अगर वो सही है, तो आप मान के चलिए जितना आपने आंसर लिखा वो पूरा आंसर आपका 100% सही है। एग्जामिनर विल इम्प्रेस यू वेरी मच और वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दे सकता है। ये मिथ है कि थ्योरी में फुल में से फुल मार्क्स नहीं आते हैं, आते हैं, हम लोग अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं। तो पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, जैसा मैंने बताया आपकी बुलेट पॉइंट के हिसाब से आंसर दीजिए। मतलब एग्जामिनर को आप मजबूर कर दीजिए कि वो आपका हर लाइन पढ़े। अगर वो हर लाइन पढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसमें से गिस निकलेगा ही निकलेगा और वो मार्क्स देने के लिए मजबूर होगा। करेक्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है एग्जामिनर के लिए, क्योंकि स्टेप बाई, हम जब भी हम लोग कॉपी चेक करते हैं हमको देखना पड़ता है कि स्टेप मार्क्स कहाँ दें हम। तो वो स्टेप अगर लिखा ही नहीं है तो स्टेट पे वो पॉइंट कट हो जाता है। और फाइनल कंक्लूजन आपको बोल्ड करके ही लिखना है उसके अंदर, या उसको ऐसा सर्कल बना के लिखना है। आई थिंक लास्ट स्लाइड है मेरी ये, इसके बाद एक स्लाइड और है। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक। यस, ये है सक्सेस का फॉर्मूला फ्रेंड्स। मैंने शुरू में जो बताया था, केपीटी नॉलेज 50% चाहिए आपको कम से कम। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट 25% मान के चलिए, 25% वेटेज आपको प्रेजेंटेशन पे देना ही है। प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ गई, आपको हाईलाइट करना, कीवर्ड लिखना, पैराग्राफ लिखना, बुलेट पॉइंट लिखना, प्रोविजंस लिखने, सेक्शन अगर आपको ध्यान है तो लिखना, अदरवाइज लिखना, सारी चीजें प्रेजेंटेशन का पार्ट है। बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर दिया आपने, पूरा पूरा जो आपका कॉपी है वही अंडरलाइन से भर दिया, तो एग्जामिनर उसको भी ढंग से देखेगा, बोला इतना सारा अंडरलाइन, तो वो भी एक बार कंफ्यूज हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको हाईलाइट करना है। टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा है लास्ट का 10% रिवीजन। ये जो 10% है ये हर बार करते हैं इसीलिए कि हम लोग उसको वापस रीचेक नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख नहीं पाते, कोई क्वेश्चन छूट जाता है वो नहीं देख पाते हैं, तो रिवीजन जरूर कीजिए। जाते जाते बस मेरे हिसाब से अब हम इसको ज्यादा इफेक्टिव तब बना पाएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई देंगे। तो ये मेरी साइड से था फ्रेंड्स।
स्टडी विथ कॉन्फिडेंस, कीप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखिए स्टडी के अंदर, अपने आप में फेथ रखिए। हम लोग कई बार नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए बोल देते हैं कि यार पता नहीं आज का पेपर कैसा होगा, पता नहीं आज का पेपर खराब होगा। ये जो नेगेटिव वर्ड्स हम अपने आप के लिए बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये कभी नहीं बोलिए। नेवर नेवर यूज दिस वर्ड। हमेशा अगर आपने स्टडी करी है तो आप हमेशा पॉजिटिव बोलेगी, आज का पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है तो आज का पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा। मन में डाउट भी मत रखिए और मुंह से तो कभी भूल के भी, वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार मुंह पे सरस्वती विराजमान है, वो अगर उसी वक्त सरस्वती विराजमान हुई और अगर आपने नेगेटिव पॉइंट बोल दिया कि आज का पेपर मेरा खराब होगा, तो आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम होने वाली है। सो ऑलवेज स्पीक इन अ पॉजिटिव वे। और सबसे लास्ट में मैं, ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है, मैं जब भी पेपर देता हूँ एक बार जरूर बोलता हूँ कि भगवान मैंने जितना करना था उतना कर दिया, बाकी अब सब कुछ आपके ऊपर है। तो लास्ट में जाते जाते 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि हो लंबी रात कितनी भी, उसे ढलना जरूरी है, नमक हो सख्त कितना भी, उसे गलना जरूरी है, बुलंदी हौसलों में हो, असंभव कुछ नहीं होता, मिलेगी मंजिलें बेशक मगर चलना जरूरी है। इफ यू मूव ऑन कंटिन्यू देन मान के चलिए सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये जो बैच मैंने लगाया है ये हर स्टूडेंट के बैच लगेगा ही लगेगा, और जिस अटेम्प्ट में आपने सोचा है उसी अटेम्प्ट में लगेगा, इट्स माय गारंटी। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, बाकी ईश्वर आपके साथ ही है। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो देन वी कैन आंसर इट। अगर प्रिपरेशन से पहले का क्वेश्चन है तो मुरली जी लेंगे, और एग्जाम के जब हम पेपर दे रहे हैं उस वक्त का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो मैं आंसर कर दूंगा। सर चैट में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों ने डाले हुए हैं। यस, मैं देख लेता हूँ सर। यश आप पढ़ के सुना दो। ओके सर। सर पहला क्वेश्चन ये है कि कितने अटेम्प्ट्स के आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने चाहिए, और आईबीएस के पेपर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कितने अटेम्प्ट के आरटीपी का और एमटीपी सॉल्व करने चाहिए, और आईबीएस के हाँ पेपर की ठीक कैसे है। प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो आरटीपी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। अगर हम लोग इनकम टैक्स की और इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुराने आरटीपी सोल्व करने से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ऑडिट है, कॉस्टिंग है, ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट है, इनके आरटीपी एटलीस्ट आप 3 to 4 अटेम्प्ट के करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी मुरली जी यू कैन आंसर वेरी वेल। सर आरटीपी पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जो आपका जैसे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2 बार 3 बार जो भी आपको लगता है कि आपका, मेरा वही आंसर है सर, सेल्फ एनालिसिस। आपको लगता है अभी भी वीक जा रहा है, यू शुड ट्राई, अगर नहीं तो आपको करना है। बस ऐसा नहीं दिट शुड बी मल्टीपल, अगर 2-3 टाइम बाद भी अगर वीक जा रहा है तो यू शुड नीड टू एनालिसिस कि अपन गलत कहाँ पे जा रहा है, इंस्टेड दैट वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो यू शुड फोकस ऑन दैट फर्स्ट। सो यस, आई एम एग्री विद यू। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। यस सर। और सर एक और क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉपर आईसीआई के फॉर्मेट यूज करना है क्या? प्रैक्टिकल पेपर से मेरा आपका मतलब है कि लाइक कॉस्टिंग और लाइक दिस? यस सर, शायद कॉस्टिंग और उसके लिए डाला हुआ। नहीं, देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, आपको फॉर्मेट एज सच ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्टेप बाय होना चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर सिंपल एग्जांपल दूं, आपको कॉस्ट शीट बनानी है तो कॉस्ट शीट अगर आपको बनानी है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल एंड लास्ट जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल वहां तक आना चाहिए, वो स्टेप्स पूरी आनी चाहिए आपकी। तो एग्जैक्टली फॉर्मेट हो जरूरी नहीं है, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट जो उसका पैटर्न है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अंदर आनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा हो। जस्ट लाइक मैंने जैसे बताया कि डिफरेंशिएट क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये एक फॉर्मेट हो गया कि आपको 2 कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट में एक वर्ड लिखना है, राइट में दूसरा लिखना है, उसका डिफरेंस लिखना है। उसको अगर आप थ्योरी के वे में लिखेंगे तो फिर वो फॉर्मेट ही गलत हो गया, उसको वो समझ ही नहीं पाएगा। डिफरेंस करना है आपको तो इजीली डिफरेंस दिखना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए इधर है, बी इधर है, तो डिफरेंस क्लियर दिखना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट ए में ये होना चाहिए, बी में ये होना चाहिए, सेकंड पॉइंट ए में ये होना चाहिए, बी में डिफरेंस। तो फॉर्मेट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट वाली कोई नहीं है, बट जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो वर्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टेट, एक्सप्लेन, वो हमको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है वो।
यस सर। मुरली जी आप ऐड करते रहिए कोई भी, अगर अपने हिसाब से भी कुछ, क्योंकि सर आपने बिल्कुल मैं ऐड कर दूंगा नहीं, सब। हम नहीं जो मैं भी इसलिए बोल मेरा रहा हूँ कि क्योंकि आपने बहुत मेरे से बहुत बाद में एग्जाम दिया तो पैटर्न काफी चेंज हो गया। मैंने बहुत पहले एग्जाम दिया, उस वक्त पैटर्न बहुत अलग था, आज की डेट में पैटर्न अलग है, तो हो सकता है आई एम नॉट इक्विटेड विद, लेकिन अगर कुछ सर भी ऐसा ऐड कर है दूंगा सर, बिल्कुल आप लीड लीजिए, मैं जो भी होगा उसमें मेरा ऐड कर दूंगा। राइट राइट। लिखा है एक और क्वेश्चन है, सर समटाइम देयर इज अ डिफरेंस इन क्लास फॉर्मेट ऑफ फैकल्टीज वर्सेस आईसीआई मटेरियल, व्हिच फॉर्मेट नीड टू डू इन एग्जाम? नहीं सर, इसमें देखिए मैं बताऊँ आपको, फैकल्टी से इनका कहने का मतलब कोचिंग क्लासेस से होगा ना? यस। नहीं ऑफ कोर्स कोचिंग क्लासेस वाला का तो उनका देखो एक सेट पैटर्न होता ही है, क्योंकि वो ये उनका क्या होता है, कोचिंग कभी भी शुरुआत करते हैं, जैसे कॉस्टिंग की बात है, वो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं ना, वो उनका ये माइंडसेट रहता है कि ये बेस है, इसके बेस पे वो आगे से अकाउंट से जैसे अमाल्गमेशन है, इस तरह के जो है, तो वो जो स्टार्टिंग जो करते हैं उनका ये ध्यान रहता है कि भाई इसी पैटर्न पे आप चलोगे तो आपको लास्ट जो टॉपिक है आप क्लियरिटी होंगे, तो उनका एक पैटर्न होता है। इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप देखिए स्टेज मीटर उठा के अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर का आपका अपना सेट पैटर्न है, तो अगर आप कोचिंग वाला भी पैटर्न फॉलो करते हैं तो नथिंग हार्म, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वो आपको कंसेप्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आपने उसको अच्छी तरह समझा भी है और अच्छी तरह लिखा भी है, तो अगर वो फॉलो करते हैं तो कोई नथिंग हार्म आई थिंक। सर एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा, एक शायद चैट में एक मेगा जैन का है, सो इट विल बी रिलेटेड टू समथिंग लाइक कि लॉ में कंसिस्टेंट मेरे मार्क्स बिलो 40 आ रहे हैं, एंड प्लीज गाइड मी हाउ टू इम्प्रूव द मार्क्स इन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड टैक्सेशन, माई राइटिंग स्पीड इज ऑल्सो स्लो। तो उस पर मेरा ये कमेंट है कि अगर आपको कोई लग रहा है दैट ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो यू शुड ट्राई कि उसको आप जो आपकी डेली वर्किंग है, मतलब जो ऐसा आप प्लान करते हैं कि भाई मेरे को ये वाला अटेम्प्ट देना है, तो आप जब तक उस सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे ना तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं पे तो लैक कर ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, या कोई चीज ऐसी चीज हो रही है कि कुछ हो सकता है कि कुछ लॉ में थ्योरी सब्जेक्ट है अपन उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज लें कि डेली अपन को लगता है कि यार अराउंड देर आर अराउंड 12 चैप्टर्स, तो आप एक चैप्टर डेली पढ़ें, सुबह आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, जब तक जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, मतलब एक कुछ डेली 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, वॉट एवर टाइम विल बी, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप टाइम शेड्यूल में डालिए, और उसको डेली करेंगे तो ऑटोमेटिकली एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम उस सब्जेक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जस्ट लाइक दैट मेरा ऑडिट वीक था व्हेन आई गिवन द एग्जाम, तो मैं क्या करता था, डेली सुबह आधा घंटा ऑडिट पढ़ता था, एक सब्जेक्ट ले लेता, आज ये कैसे लिया, दैट आई शुड रीड ऑन डेली बेसिस, धीरे 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 ऐसा करके, मतलब इवन फॉर द लास्ट टाइम ऐसा है कि भाई ऑडिट का आप तो कोई भी क्वेश्चन दे दो आई कैन आंसर इजीली, सो यू शुड अडॉप्ट दैट पर्सन। सेकेंडली राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप एक बहुत बड़ा ब्लंड, मतलब वो हो रहा है कि आप 100 नंबर, मतलब इंस्टीट्यूट आपको 15 नंबर तो दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि आप करके 85 का रहो, तो यू शुड वर्क, मतलब आपको मतलब बिल्कुल 100% वर्क करना है और 100 नंबर का पेपर आपको अटेंड करना ही करना है इफ यू वांट टू सिक्योर एंड क्लियर दैट, क्योंकि 85 मतलब 15 मार्क्स मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े होते हैं। 15 मार्क्स की तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो अगर आपका कुछ राइटिंग स्लो है तो यू शुड, जो मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट का एनालिसिस, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। राइटिंग स्लो है, यू शुड राइट द पेपर बट यू शुड इम्प्रूव, और अगर आप अभी से भी करोगे ना तो यू हैव द गुड टाइम टू कंप्लीट ऑल द टास्क दैट you have mentioned, and I think so you should easily crack that. So that's from my point of view sir on that answer. मुरली सर एक चीज और, मैं नवीन सर एक चीज पूछना चाह रहा था एक्चुअली, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें पहले जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करना चाहिए या उन्हें लास्ट में करना चाहिए। एक्चुअली रीजन एक होता है, कहने के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बट तो उसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है, तो कभी कभी बच्चे उसमें बहुत पजल हो जाते हैं, तो सर आपका क्या व्यू है, व्हाट दे शुड डू? सर मेरा व्यू बता देता हूँ, बाकी मुरली जी ज्यादा बताएंगे क्योंकि मेरा टाइम तो एमसीक्यू होते ही नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि मैं रेगुलर टच में हूँ इनके। एमसीक्यू देखिए, सबसे बड़ा एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार फटाफट 30 मार्क्स आ जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो एमसीक्यू के अंदर ही है। 30 मार्क्स में ये मान के चलिए कि एमसीक्यू में, मतलब इसमें तो ये हो गया ना कि अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा तो हाफ मार्क्स तो मतलब आधा तो मिल ही जाएंगे, अगर 4 मार्क्स का तो 2 तो मिल ही जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब है तो राइट रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट। तो मेरा तो ये व्यू है कि आप एमसीक्यू कर सकते हैं स्टार्ट में, अगर आप पहले आप पढ़ लीजिए, अगर 10 आई थिंक कितने 10 आते हैं एमसीक्यू, कितने आते हैं
आजकल मुझे आइडिया नहीं, 10 मार्क्स आते हैं सर, 15 आते हैं, 15 आते हैं, नॉर्मली 15 आते हैं। 15 आते हैं। 15 एमसीक्यू आप एक बार, क्योंकि वो जो 15 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम पढ़ते ही हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि 5-7 एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह आते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट विद एमसीक्यू। लेकिन उसमें स्पेशली ध्यान दीजिए कि उसके ऊपर टाइमिंग जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं देना है, जो आपको आता है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर लिखा उसके आगे आपको ए और बी सी डी लिखना है, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको आते हैं वो तो फटाफट लिख दीजिए, और जो नहीं आते हैं उसके नीचे पॉइंट छोड़ दीजिए। सपोज मुझे 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, नहीं आया, बाकी नहीं आया, तो मैंने 2 3 जो भी है लिख दिए, जो आ गया वो लिख दिए। और बाकी में अगर मुझे टाइम लग रहा है तो एक बार के लिए मुझे उसको छोड़ के क्वेश्चन को आगे बढ़ना चाहिए। देन अगेन जब मुझे टाइम मिले लास्ट में, तो जो नहीं आ रहे हैं उस पर ध्यान, क्योंकि एमसीक्यू जितना टाइम ले सकता है आप मान के चलिए उतना ज्यादा टाइम खराब करेगा कि आपके उतने वे में हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, और कई बार दो जो आंसर होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो बहुत देर तक आप उसको 10 मिनट तक सोचते रहो तो भी आपको नहीं आएगा। तो स्ट्रेट वे जो आपको आ रहा है वो लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए नंबर डाल के उसी पेज पे। ये गलती भी बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि आधे एमसीक्यू एक साथ करते हैं, आधे एमसीक्यू बाद में करते हैं। प्लीज नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। एग्जामिनर का दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है कि आधे वो क्या करता है, वो आगे उनको लगता है कि उसने जो 7 एमसीक्यू किए हैं वो 7 के हिसाब से मार्क दे देता है, बाद में जब अरे अरे और है तो उसको तो चूंकि देने तो पड़ेंगे, लेकिन उसका दिमाग खराब ही रहता है। तो आप उसकी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको केवल नंबर ही तो ए बी सी डी इतना सा तो लिखना है, जगह छोड़ दीजिए उसके गो अहेड। और बाद में जब आपको थोड़ा टाइम मिले तो सोचिए क्या लिखना है, उसमें गलत भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली 5 से 7 एमसीक्यू अगर आप आए हैं तो ही एमसीक्यू से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो उसको बीच में या लास्ट में करिए। ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू सर। मुरली सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? परफेक्ट, सर ने सारी चीजें कवर करी है, और यही होना चाहिए कि आपको बिल्कुल 15 मिनट्स में जो भी लगता है फास्ट आंसर करिए। लास्ट में आपको जो भी सिमिलरिटी या लगता है उसका आप एक बार लास्ट में एनालिसिस करके रखिए। तो 100% एग्री विद सर कि आपको अटेंड और पैटर्न भी इनिशियली सब एक साथ करेंगे तो इट्स बेटर कि जो रिव्यू कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ईजी रहेगा, और अपने लिए भी बहुत ईजी है कि ये पॉइंट, और लास्ट में जब आपके पास फ्री टाइम बचता है यू कैन आंसर दैट। एग्री विद सर। मुरली जी आईबीएस, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, आईबीएस ये आप ही दे सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर आईबीएस पेपर है, कौन सा आईबीएस मतलब कौन सा पेपर हुआ ये? सर ये केस ओपन बुक स्टडी वाला है क्या? ये ओपन बुक वाला है क्या? यस सर, यस सर, इट्स ओपन बुक पेपर सर। हाँ, वो इसका आंसर मुरली दे सकते हैं, हमारा टाइम तो था ही नहीं एक्चुअली आईबीएस। हाँ सर, एटलीस्ट मेरे टाइम भी नहीं था, ठीक है। नहीं था क्या? बट ये दिस इज द ओपन बुक है, तो सर अभी शायद पैटर्न भी चेंज हुआ है रिसेंटली। पहले तो शायद मल्टीपल बुक्स आते थे, अभी जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं की शायद केस स्टडीज आती है कुछ, तो कुछ ऐसा पैटर्न है। तो बेसिकली सर मैं वही बोलूंगा, नितिन सर अगर बेटर गाइड कर पाए, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से। सर एक चीज नितिन सर बीच में मैं रोकना चाहूंगा, स्पेशली जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, केस स्टडी के बारे में आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। 2 कंसेप्ट आते हैं, नथिंग इज आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो ये केस स्टडी के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो है नथिंग इज आउट ऑफ बॉक्स। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे एजम्पशन उसके अंदर लिख देते हैं उस आंसर के अंदर जो उस केस स्टडी का पार्ट ही नहीं है, राइट। तो केस स्टडी के अंदर आप मान के चलिए उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके वो केस स्टडी समझ में आती है कि एक्चुअली केस स्टडी क्या है, और उसके आंसर उस केस स्टडी में से आने। यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग, आप उसको आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई भी अज्यूम करके उसका आंसर नहीं लिख सकते, वो आंसर बिल्कुल 100% गलत ही होगा, मान के चलिए आप। तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसी को आपको मान के और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। केस स्टडी में स्पेशली ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। या नितिन सर प्लीज। यस सर, बिल्कुल आपने सर बिल्कुल सही बात कही सर। आईबीएस के पेपर में मेरा अपना व्यू ये है, एक्चुअली मैंने इस बार भी देखा, एक्चुअली मैंने आई वाज परस्यूइंग डीआईआईटी को, तब मैं एग्जाम दे रहा था, तो उस दिन आईबीएस का भी एग्जाम था। सर बच्चे ना बहुत बड़ी बड़ी सूटकेस अटैची लेके 2 अटैचियां लेके आ रहे थे। तो मेरा अपना कंसर्न है क्या सर कि वो वहां खोल भी नहीं सकते सर एग्जाम जरूर 4 घंटे का है, तो मुझे लगता है कि हमें केवल वो बुक्स कैरी करके लेके जानी चाहिए कि जो या तो रेस्पेक्टिव उनके जो लॉज हैं, जो भी हमारा बेयर एक्ट है, या फिर वो बुक जो हमने स्टडी करी हुई हो, सो डेट कि सर कम से कम उसे अगर हमने स्टडी किया हुआ है तो हमें मालूम होगा कि कौन सी बुक में क्या पेपर है सर। तो अननेसेसरी इररिलेवेंट बुक्स लेके जाने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है सर। बात तो हर स्टूडेंट अपने आप में बेस्ट जज है, तो बट मुझे ऐसा फील आता है। राइट। यश, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं वैसे तो।
ओके एक क्या है, एक क्वेश्चन ये आया प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट कितने डिजिट तक लेनी है। आई थिंक 2 डिजिट बहुत सफिशिएंट होती है, 2 डिजिट ज्यादा तो कोई यूज ही नहीं है इसका एक्चुअली। so now we can conclude. Ishwin, आई if थिंक there is no other question. Yes, sir. I request Ishwin to propose vote of thanks. Sure, sir. As we wrap up today's empowering session on CA exam scoring secrets, decoding the marking pattern, I stand here with immense gratitude on behalf of CISC and SECASA. First and foremost, a heartfelt thank to our esteemed dignitaries, our chairman SECASA, CA Nitin Gupta sir, our secretary CIC, CA Nirbhik Gandhi sir, for their visionary leadership, constant encouragement, and for always steering student-first initiatives with such enthusiasm. A special and sincere thank you to our expert speakers, CA Murli Atal sir and CA Naveen Vagrecha sir, for breaking down the intricate mechanics of ICA evaluation into practical, actionable strategies. The insights shared today on step marking, answer presentation, and exam strategy will undoubtedly give our aspirants the edge they need in the examination hall. Finally, my heartfelt appreciation goes out to my team, Yash, Vice Chairman, Shivangi, Secretary, and Shivang, Treasurer, and all the energetic C aspirants joined with us today. Your active participation and dedication to continuous learning are what make events like this truly successful. Thank you once again, everyone. Wish you all the very best for upcoming exams. ये स्टूडेंट Thank you. स्टूडेंट अगर कोई पूछना है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। इफ देयर इन एनी इश्यू दे कैन रेज पूछना चाहे सर। हाँ, एक बार देख लेते हैं, एक दो हैंड रेज हुए हैं। यस, शेख सोहेल अलाउड टू टॉक। सर मैंने इन्हें कर दिया है। शेख सोहेल, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट करके पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपका मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, पर मैं ये 4-5 रुपीज का डिफरेंस में समझ नहीं पा रहा कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप। एक बार अनम्यूट कर लीजिए शेख आप अपने आप को। सोहेल, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद सर, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हमारी तरफ से अलाउ कर दिया सर अनम्यूट के लिए। हाँ, हमने अलाउ कर दिया। ओके, वो बोला रीडिंग रूम में हूँ। ओके, तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछा? तो क्वेश्चन क्यों पूछा? चलिए, उनका क्वेश्चन ये है कि सॉरी, अच्छा क्वेश्चन ही हटा दिया क्या उसको? मैंने इन्होंने लिखा है कि सर ये एफएम के लिए पूछ रहे हैं, वो एफएम और एफआर के लिए सर। अच्छा, ओके 4-5 रुपीज का डिफरेंस एफएम और किसके लिए पूछ रहे हो? वो एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नहीं 4-5 रुपीज का डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अगर 4-5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने ऊपर कोई स्टेप गलत लिखा है एक्चुअली। अदरवाइज 4-5 रुपीज का स्टेप, 4-5 रुपीज का डिफरेंस जहाँ परसेंटेज या फ्रैक्शन लगते हैं वहां आपका डिफरेंस आ सकता है। एफआर में तो ऐसा कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ लगते नहीं है, तो आई थिंक स्टेट में चलता है। 4-5 रुपये डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ऊपर आपने स्टेप गलत लिखा है, तो वो मार्क्स काटेगा ही काटेगा, 100% कटेंगे। बिकॉज वो एग्जामिनर इतना देखता ही नहीं है, उसको तो सीधा 4,53,250 अगर लिखा हुआ है तो 453,250 लिखना चाहिए। 250 बना होगा तो वो भी काट देगा वो। तो 4-5 सर इज सेइंग प्रेजेंट वैल्यू की वजह से है। प्रेजेंट वैल्यू की वजह से इज ओके, पर 4-5 रुपीज का डिफरेंस नहीं आ सकता सर प्रेजेंट वैल्यू की वजह से। 4-5 रुपीज का डिफरेंस नहीं आ सकता, 1 रुपए का डिफरेंस ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू को अगर आप डिस्काउंटेड करोगे तो पॉइंट के बाद का है, तो पॉइंट के बाद ज्यादा उसको राउंड ऑफ करोगे तो 1 रुपए का फर्क आ सकता है, 2 रुपए का आ सकता है। 4-5 रुपीज का डिफरेंस नहीं आ सकता है सर, कहीं गड़बड़ है सर। So thank you very much, Naveen sir. Thank you sir. Thank you so much for sparing your valuable time and enriching our student. Thank you so much. I think मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही थी, मतलब सर बिल्कुल आपकी वॉइस सर बिल्कुल प्रॉपर थी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। निर्भीक भाई है नहीं, पर उनकी इन एब्सेंस उनको भी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सुलभ जी, प्लीज क्लोज कर दूं? क्लोज कर दीजिए।